Everyone. Good evening. Thank you. ઇન્ટરનેશનલ માર્કેટમાં ખૂબ ગરમાગરમી ચાલી રહી છે. આપણું સુરતનું વાતાવરણ પણ ઘણું ગરમ છે, પણ હોલ એસી છે, ઠંડો છે. સો આઈ એક્સપેક્ટ સમ એનર્જી. ધ સધર્ન ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રી દ્વારા આયોજિત સુરત સ્ટાર્ટઅપ સમિટ 2025માં આપ સૌનું સ્વાગત છે. મારું નામ ચિત્રાંગ શાહ છે. હું આમ તો સુરતનો જ છું, પણ રિસેન્ટલી યુએસથી આવ્યો છું, એટલે કદાચ ભાષામાં થોડું ઉપર નીચે થાય તો ચલાવી લેજો. સુરત સ્ટાર્ટઅપ સમિટ 2025ના 3 દિવસના 11, 12, 13 એપ્રિલના કાર્યક્રમમાં આજનો પહેલો કાર્યક્રમ પેનલ ડિસ્કશન છે, વાય સુરત એઝ અ સિટી. આ પેનલ ડિસ્કશનમાં આપણા એસજીસીસીઆઈના પ્રેસિડેન્ટ શ્રી વિજયભાઈ મેવાવાળા, ઇમિડિયેટ પાસ્ટ પ્રેસિડેન્ટ શ્રી રમેશભાઈ વગાસિયા, આપણા અતિથિ આ પેનલ ડિસ્કશનના શ્રી વિપુલભાઈ કપૂર, શ્રી આશીષભાઈ નારોલા, શ્રી નમનભાઈ સરાવગી અને શ્રી અલ્પેશ વગાસિયા, અને જેમની સતત મહેનતને કારણે આ સુરત સ્ટાર્ટઅપ સમિટ 2025 આજે સક્સેસફુલ રૂપ ધારણ કરી રહ્યું છે, એવા પુનિતભાઈ ગજેરા. Dignitaries on and off the dais, I welcome you to today's panel discussion. I would also like to welcome the entrepreneurs, founders, investors, students, and our fellow Surtis to this amazing topic of why Surat as a city. But before we proceed, I would like to welcome our President, Shri Vijaybai Mevawala, to address the audience. થેન્ક યુ ચિંતનભાઈ. ડાયસ પર બેઠેલાનો પરિચય ચિંતનભાઈ આપી દીધો છે. અને ગુડ આફ્ટરનૂન એવરીબડી. આજના સ્ટાર્ટઅપ અને એજ્યુકેશન એક્સપોના ફર્સ્ટ ડે, પ્રથમ દિવસે ના પ્રથમ સેમિનાર વાય સુરત એઝ અ સિટી અને વેર ધ ઇનોવેશન મીટ્સ ઓપોર્ચ્યુનિટી સબ્જેક્ટ પર આધારિત આ સેમિનારમાં હું મારા આઈપીટીસી રમેશભાઈ વગાસિયા, અમારા આના કો ચેરમેન શ્રી આપણા પુનિતભાઈ ગજેરા, તેમજ સર્વે સ્પીકરો જે બેઠા છે તેનો ચિંતનભાઈ પરિચય આપી જ દીધો છે કે સર્વને, અને એ લોકો સર્વે વતી હું આપ સર્વને હૃદયથી આવકારું છું. આપ જાણો જ છો આજે સ્ટાર્ટઅપની કેટલી ડિમાન્ડ છે, ને અહીંયા હું જોઈ રહ્યો છું બધા યંગ ઘણા બધા છે. અને સ્ટાર્ટઅપ એક્ઝિબિશન જ્યારથી આપણે ડિક્લેર કર્યું ત્યારથી અમારા પર સતત ફોન ઓફ કોલેજીસના, યુનિવર્સિટીના આવતા રહે છે કે અમારે આ એક્ઝિબિશનમાં આવવું છે. અને જનરલી સ્ટાર્ટઅપ એ યંગ જનરેશનોમાં વધુ પ્રચલિત છે. આજે સુરતમાં કોવર્કિંગ સ્પેસ, સ્ટાર્ટઅપ ને એનું એટલું બધું ચલણ છે કે આજે તમે કોવર્કિંગ સ્પેસ માટે પણ જગ્યા હોય તો તરત ઉપડી જતી હોય છે. એટલે સુરત કંઈકનું કંઈક નવું ઓલવેઝ કરવા ઈચ્છતી હોય છે. અને સુરત એ ઇનોવેશનનું આજે સેન્ટર બની ગયું છે. એવું કહેવાય છે ને કે આફતમાંથી અવસર શોધવાનું કામ સુરતનું છે. કોઈ બી આફત આવે તેને અવસરમાં કેવી રીતે ફેરવવું એ કામ સુરતનું છે. એટલે જ આ સ્ટાર્ટઅપ, આજે જેટલા સ્ટાર્ટઅપો ગુજરાતમાં થાય છે ને એના વધુ સ્ટાર્ટઅપો સુરતમાં થાય છે. એનું એક ઉદાહરણ કે હમણાં જ આપણા પુનિતભાઈ ગજેરાને એવોર્ડ મળ્યો 3 દિવસ 4 દિવસ પહેલાં સાહેબના હસ્તે. એટલે સુરતનું સ્ટાર્ટઅપ, ને સુરતમાં એવું નથી, ઘણા બધા એવા ઉદ્યોગો છે જે સુરતથી સ્ટાર્ટ થાય છે. આજે એની સાથે એજ્યુકેશન એક્સપો પણ આપણે અહીંયા લઈને આવ્યા છે. ને એજ્યુકેશન એક્સપોમાં આજે સુરતની ને એની આજુબાજુની ઘણી ગુજરાતની યુનિવર્સિટીઓ આપણી સાથે જોડાઈ છે. તદ ઉપરાંત ફોરેનની યુનિવર્સિટીઓ, 32 ફોરેનની યુનિવર્સિટીઓ આજે અહીંયા આવી છે. એટલે સુરતમાં જે 32 ફોરેનની યુનિવર્સિટી આવી એ સુરત માટે ક્રેડિટ છે. સુરત આજે ફાસ્ટેસ્ટ ગ્રોઈંગ સિટીમાંનું એક સિટી જે આજે શહેરના 4 ફાસ્ટેસ્ટ ગ્રોઈંગ છે
એમાં સુરતનો નંબર છે અને વર્લ્ડમાં ફાસ્ટેસ્ટ ગ્રોઈંગ સિટીમાં 8 નંબરનું શહેર સુરત છે. એટલે લોકોની નજર, દુનિયાની નજર ભારત પર છે, ભારતની નજર ગુજરાતને, ગુજરાતની સમગ્ર નજર સુરત પર છે. એટલે એવું નથી કે ફક્ત ભારત પર જ છે. અને આપણે સુરતને સ્ટાર્ટઅપ થકી કેવી રીતે આગળ લઈ જવું, એમાં કોઈ હર્ડલ્સ આવે તો એને કેવી રીતે ઉકેલવા. આજે અમે અહીંયાથી સ્ટાર્ટઅપ બાયર્સોને પણ ઇન્વાઇટ કર્યા છે કે જેના સ્ટાર્ટઅપ હોય સારા. અને અહીંયા ગયા વખતના અહીંયા જે અમે કર્યું હતું પ્લેટિનમ હોલમાં, તેમાં 5 સ્ટાર્ટઅપ તો અમારા અહીં વેચાઈ ગયા હતા. તેવી રીતે આજે બી અમે અહીંયા ફર્યા. આજે પ્રફુલભાઈ પાનસરી આવ્યા હતા, ભરતભાઈ શાહ આવ્યા હતા, એમની સાથે ફર્યા. ને એવા ઘણા નવા સ્ટાર્ટઅપો, સારા સ્ટાર્ટઅપો છે કે લગભગ અહીં કોઈક વેચી દે. આ વિન્ડ મિલનું સ્ટાર્ટઅપ જે છે તે ઘણું સરસ છે અહીંયા, કે જે તમારી સ્પેસ રોકે છે ટેરેસ પર, ઉપર તમારી જે આખી ટેરેસ રોકાઈ જાય છે, એના બદલે ખાલી વિન્ડ મિલ, મિની વિન્ડ મિલ છે ને એમાં સારી છે. 3 ટાઈમ્સ 4 ટાઈમ્સ મોંઘું છે, પણ એની સાથે તમારી સ્પેસ બચે છે ઉપર, ને ઘણું સારું સ્ટાર્ટઅપ છે. એટલે એવા ઘણા સારા સ્ટાર્ટઅપો અહીં મૂકવામાં આવ્યા છે. તો એના આ પ્રથમ, અને કાલે તો લગભગ 20 સ્પીકર છે અમારે અહીંયા, 20 સ્પીકર્સ કાલે, 20 સ્પીકર્સ પ્લસ કાલે અહીં છે. આજે પ્રથમ દિવસ છે, પહેલો સેમિનાર છે. ને કાલે પણ આપ દરેક અમારા સ્પીકરોને સાંભળો અને આપ દરેક અહીં આટલો હોલ ફૂલ થઈ જાય એવી કોશિશ કરજો. આજે તમે જાઓ ને અનુભવ લઈને જાઓ, ને તમારા થકી તમારા મિત્રોને, એ લોકોને તમે લઈને અહીં આવો એવી અમે અપેક્ષા રાખીએ છીએ. અને અંતે એમ કહેવાય છે, જ્યાં વિચાર મળે તક સાથે ત્યાં સર્જાય છે ઇતિહાસ. એટલે અહીંયા આપણે એકબીજાના વિચારોની આપ-લે કરવાની છે અને ઇતિહાસ સર્જવાનો છે કે સુરત શું ઇતિહાસ સર્જી છે. SGCCI તો ટ્રેડ ઇન્ડસ્ટ્રીનું કામ કરે જ છે, લોકોને આગળ વધારવાનું કામ કરે જ છે. ટ્રેડ ઇન્ડસ્ટ્રી કેવી રીતે ગ્રો થાય, ટ્રેડિશનલ ઇન્ડસ્ટ્રીના શું પ્રશ્નો છે, એ સરકાર સમક્ષ શું રજૂ કરવાનું હોય, તે તો અમે કામ કરીએ જ છીએ. અને તમે વિચારો કે 13,000 પ્લસ મેમ્બર, 150 પ્લસ એસોસિએશન, ભરૂચથી ઉમરગામ, વાપી સુધીની અમારી ટેરેટરી. એટલે અમે કેટલી રજૂઆતો કરતા હોઈશું. રોજ સવાર પડે એટલે અમારી ત્યાં કોઈકની કોઈક રજૂઆતો આવતી હોય છે. અને આખો દિવસ અમારો એમાં ને ટ્રેડ ઇન્ડસ્ટ્રીની જ રજૂઆતો આવતી હોય. કારણ કે એવું નથી ટેક્સટાઇલ ને ડાયમંડ સિટી છે સુરત, તો ફક્ત એની જ રજૂઆતો આવે છે. દરેક પ્રકારના બિઝનેસની રજૂઆતો આવતી હોય છે. રિન્યુએબલ એનર્જી હોય, IT સેક્ટર હોય, ફાર્મા હોય, પછી ડિજિટલ માર્કેટિંગ હોય, દરેક પ્રકારની રજૂઆતો અમારે આવતી હોય છે. અને પછી તે ઉપરાંતથી અમારા નાનપણમાં સ્કિલિંગ સેન્ટર ચાલે છે, તેનું પણ અમારે અહીંયા વ્યવસ્થિત રીતે એને ઓપરેટ કરવાનું હોય છે. એમાં સ્કિલિંગ સેન્ટરમાં પણ અમારા ડિજિટલ માર્કેટિંગના, ઇમ્પોર્ટ એક્સપોર્ટના, ઈ કોમર્સના, વોટર જેટ, એર જેટ, વેલ્યુ એડિશન, દરેક પ્રકારના અમારા કોર્સ ત્યાં ચાલતા હોય છે. એટલે ટ્રેડ ઇન્ડસ્ટ્રીનું કામ જ્યાં ટ્રેડ ઇન્ડસ્ટ્રીના હિતમાં થતું હોય એ સર્વ કામ ચેમ્બર કરવા માટે રેડી છે અને કરીએ છીએ. ને અમે બનતી અમારી કોશિશ કરીએ છીએ. એના સંદર્ભમાં સ્ટાર્ટઅપ એક્ઝિબિશન આજે આયોજનમાં આવ્યું છે. ગયા વર્ષે સ્ટાર્ટઅપ હતું, એના કરતાં આ વર્ષે ડબલ છે. પુનિતભાઈ, આ વર્ષે બમનું સ્ટાર્ટઅપ છે, તમને ખ્યાલ છે. અને આવતા વર્ષે આના કરતાં વધુ આ એક્ઝિબિશન વિકસે, નાના કરતાં વધુ મોટું થાય એવી હું આપ સર્વેને અપેક્ષા રાખું છું. આપ સર્વે પર કે આપ સર્વે બી એમાં આવતા વર્ષે અમારી સાથે જોડાઓ. અને પુનિતભાઈ અને એમની ટીમને પણ આ સાથે હું અભિનંદન આપું છું. ફરી એકવાર હું આપ સર્વે, અમારા સર્વે વતી આપ સર્વેને હૃદયથી આવકારું છું. આભાર. જય હિન્દ, જય જય ગરવી. થેન્ક યુ વિજયભાઈ. હું ઓડિયન્સને રિક્વેસ્ટ કરીશ કે આગળ ઘણી બધી જગ્યા ખાલી છે, તો પ્લીઝ ટેક ધ સીટ ઇન ધ ફ્રન્ટ. થેન્ક યુ. હવે આપણા આજના પેનલિસ્ટનો આવકાર કરવા માટે હું શ્રી વિજયભાઈ મેવાવાળાને આગ્રહ કરીશ કે આપણા પેનલિસ્ટનું પુષ્પગુચ્છ અને મેમેન્ટો સાથે સ્વાગત કરે. શ્રી વિપુલભાઈ કપૂર. અને હું ડિગ્નિટરીઝને કહીશ કે વિજયભાઈ સાથે પુનિત. શ્રી આશીષભાઈ નારોલા.
શ્રી નવનભાઈ સરાવગી, અને શ્રી અલ્પેશભાઈ વગાસિયા. હા. હવે કાર્યક્રમને આગળ વધારતા આજના પેનલિસ્ટ અને મોડરેટરનું ઇન્ટ્રોડક્શન આપવા માટે હું શ્રી પુનિત ગજરાને વિનંતી કરીશ. ગુડ ઇવનિંગ અગેન. ગ્રેટ. તો આજની પેનલ આપણી વાય સુરત એઝ એ સિટી, એટલે બિંગ અ ફર્સ્ટ સુરતી, કે સુરતમાં રહીને કંઈક બિલ્ડ કર્યું છે, સુરત માટે કર્યું છે, અને સુરતમાં જે અડચણો ઘણી બધી હશે કે શરૂઆતના સ્ટેજમાં ખબર નથી, પાછળથી બહાર જવા લાગ્યા, એક્ઝિબિશન કોન્ફરન્સ કરવા લાગ્યા તો ખબર પડી કે એક્સેસ શું હોય. એટલે આજથી 10-15 વર્ષ પહેલાની વાત કરું તો કોઈ એવા એક્સેસ નહીં હતા. આ બધું છેલ્લા કોવિડ પછીના ટાઈમમાં શરૂ થયું છે. તો ત્યારે કંઈક એવા સ્પીકરોએ આજે આપણા પેનલ પર છે, એ લોકોએ કંઈક એવું બિલ્ડ કર્યું છે કે જે બહુ બધી અડચણો હતી. એટલે એ આ સ્ટોરી આજે મારે સાંભળવી છે અને બધા જ એમાં કંઈક લઈને જઈએ તો મને બહુ જ ખુશ હું છું આજે કે આ લોકોનું મારે ઇન્ટ્રોડક્શન આપવાનું છે. કેમ કે એ લોકોએ જે મહેનતથી જે બિલ્ડ કર્યું છે એને લગભગ એવા પ્લેટફોર્મ પર કશે રેકગ્નાઇઝ નથી થયું, પણ એક સુરતના ચેમ્બરના માધ્યમથી, જ્યાં ટ્રેડ યુનિયન્સની આપણા પ્રમુખશ્રીએ વાત કરી કે ટેક્સટાઇલ ડાયમંડ ને બધા હતા જ, પણ છેલ્લા 4-5 વર્ષથી ને ચેમ્બર આઈટી સ્ટાર્ટઅપ્સ ને બીજા ઘણા નવા ઇનોવેશન પર છે. અમારું લાસ્ટ યર્સ એઆઈ પર અમે ઘણા બધા સેમિનાર કર્યા, બ્લોકચેન પર ઇન્ટરનેશનલ સ્પીકરોને પણ બોલાવ્યા કે જેનાથી ને એક નવી ઇન્ડસ્ટ્રી અને ટેકની સાથે એક નવું સોલ્યુશન થઈ શકે. તો હું આજના સ્પીકર્સની વાત કરું તો જે કંઈક એવું બિલ્ડ કર્યું છે, તેમાં સૌથી પહેલા આશીષ નારોલા, કે જેમણે 24 વર્ષથી સુરતમાં ટેકને બિઝનેસને સ્ટાર્ટ કર્યો અને અમારા બધાના જ ગુરુ કહેવાય કે એમણે એવું કંઈક સોલ્યુશન બિલ્ડ કર્યું ને વર્લ્ડ વાઇડ બધી જ કન્ટ્રીમાં એમણે પોતાનું સર્વિસીસ આપી. એમની ટેકનિકલ એક્સપર્ટીઝ અને મેઇનલી એમનું ટીમ વર્ક. એટલે જ્યારે એવું હતું કે 10 લોકોની ટીમ પણ મેનેજ કરવી અઘરી હતી, ત્યારે સાહેબની પાસે એટલે 200 થી વધારે ટીમને મેનેજ કરતા હતા. ઇટ વોઝ અબાઉ 10 years બેક. ત્યારે હવે એ થોડું ઈઝી ઘણું થઈ ગયું છે, પણ ત્યારના ટાઈમમાં એ ઊભું કરવું અને એક એવું સોલ્યુશનનું બિલીવ કરવું, એ પહેલા બેંગ્લોર ને પુણેની કંપની કરતી હતી, ત્યારે એમણે સુરતમાં બિલ્ડ કર્યું છે. સેકન્ડ આજના સ્પીકર છે નમન સરોગી, જે રેફરન્સ કરીને સ્ટાર્ટઅપના ફાઉન્ડર છે. એટલો વર્સેટાઇલ એક્સપિરિયન્સ છે કે એવા લોકો સાથે કામ કર્યા છે જે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં બહુ જ સારા લેવલ પર છે. એમણે ફ્રી ચાર્જથી શરૂ કરેલું પોતાની કેરિયર અને 100 કરતાં વધારે કન્ટ્રીમાં જેને એવું ટૂલ બિલ્ડ કર્યું છે કે અહીંયાથી ને સુરતમાં બેસીને એક એકાઉન્ટિંગ સોલ્યુશન વેચી શકાય એવું બિલીવ કરવું કે પોતાનું ટૂલ. અને એવા લોકોને કે જે નાના બિઝનેસીસ છે બીજા કન્ટ્રીમાં, મોટા બિઝનેસીસને તો રીચ આઉટ કરવું ઈઝી હોય, પણ નાના બિઝનેસીસ સુધી પહોંચાડ્યું છે. એમણે એન્જલ ઇન્વેસ્ટર્સ પણ છે અને એનએસસી લિસ્ટેડ કંપની ઇટુઈ નેટવર્ક છે, એમના પણ બોર્ડ પર છે. સો નવનભાઈ પાસે ઘણો વર્સેટાઇલ એક્સપિરિયન્સ છે ને આજે એના પર સાંભળીશું. અને છેલ્લે વિપુલભાઈ, જે આજના આપણા થર્ડ પેનલિસ્ટ છે, કો ફાઉન્ડર ઓફ ઇઝી ટેકનોલોજી, જ્યાં 25,000થી વધારે હોટલ વર્લ્ડ વાઇડ એમની કસ્ટમર એ કંપનીની હતી. અને વિપુલભાઈની બહુ જ એટ્રેક્ટિવ જર્ની એમણે કર્યું અને એમની કંપનીને કોરિયન જાયન્ટ કંપની એક્વાયર કરી અને હવે વિપુલભાઈ એઝ એન અનેબલર બની ગયા છે સિસ્ટમના. 40 થી વધારે સ્ટાર્ટઅપમાં ઇન્વેસ્ટ કર્યું છે અને એઆઈ બેઝ સ્ટાર્ટઅપ્સમાં વધારે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થઈ શકે એમના માટે એણે બ્રહ્મવેદા કરીને પોતાનું વેન્ચર પણ શરૂ કર્યું છે, જેથી સુરતની કંપનીઓને એઆઈમાં કઈ રીતના આવે ને કઈ રીતના એમને હેન્ડ હોલ્ડિંગ કરીને મોટા લેવલ પર લઈ જઈ શકાય. તો એના માટે ઘણું બધું એ કરી રહ્યા છે. અને લાસ્ટ એન્ડ લિસ્ટ આજના મોડરેટર અલ્પેશ વગાસિયા, કે જે અત્યારે સુપર વર્ક્સના કો ફાઉન્ડર છે. એમને મલ્ટિપલ વેન્ચર બિલ્ડ કર્યા છે, આર્ટૂન્સ સોલ્યુશન, આર્ટૂન ગેમ્સ કરીને.
અને ટુ બી અને ગેમિંગ કે એ પોતે સારા પ્લેયર છે અને જેવા સારા પ્લેયર છે એવી જ સારી ગેમો બનાવી છે અને ઇન્ડિયા લેવલ પર કે બહારના લેવલ પર બહુ જ સારા ગેમના ડોમેનમાં એમનું નામ છે. એ પણ આજે એન્જલ ઇન્વેસ્ટર પણ છે, ઘણા સ્ટાર્ટઅપ્સમાં એ પણ ઇન્વેસ્ટ કરે છે અને મોટી ટીમ મેનેજ કરીને ઘણા બધા લોકોને રોજગારી આ ત્રણેય લોકોએ સર્જન કરી છે. સો વધારે એમના મોઢે જ સાંભળીએ તો હું વેલકમ કરું છું. મેઇનલી મારું પણ એ માઇન્ડસેટ છે, એ જ માઇન્ડસેટ આ લોકો આજે કહેશે કે વાય સુરત ઇઝ ફર્સ્ટ અને કેમ સુરતથી સારી કંપનીઓ બિલ્ડ થાય એ મિશન સાથે. સો આઈ હેન્ડ ઓવર ટુ અલ્પેશ. આજના પેનલિસ્ટ શ્રી વિપુલભાઈ, આશીષભાઈ અને નમનભાઈ સાથે આ પેનલ ડિસ્કશનનું સંચાલન કરવા માટે, મોડરેશન કરવા માટે અલ્પેશભાઈને વિનંતી કરીશ. Thank you very much. Hello. So basically આપણે સુરતને એક ટેક્સટાઇલ હબ અને ડાયમંડ હબ તરીકે જાણીએ છીએ, વિચારીએ છીએ. જ્યારે સુરતનું નામ આવે તો આપણે વિચારીએ કે સુરત ઇઝ અ ટેક્સટાઇલ હબ અને ડાયમંડ હબ, રાઈટ? તો આજે આપણે એક એવા 3 ફાઉન્ડર સાથે બેઠા છે કે જેની ઇન્ટરેસ્ટિંગ જર્ની છે, ત્રણે અલગ અલગ ડોમેનમાંથી બિલોંગ કરે છે. પ્લસ એ લોકોએ સુરતમાં રહીને ગ્રોથ, ટીમ અને જે સ્કેલ પર એને વર્ક કર્યું છે, આપણે એની જર્ની જાણીશું. સો બેઝિકલી વિલ સ્ટાર્ટ વિથ ધ નમન, કે નમન જેમણે સુરતમાં બેસીને ગ્લોબલ લેવલ પર સોલ્યુશન સેલ કર્યું છે, પ્લસ એ ઇન્વેસ્ટેડ મોર દેન 25 સ્ટાર્ટઅપ અને એ સુરતમાં રહીને. સો પહેલો ક્વેશ્ચન આપણે એવો કરી શકીએ કે ભાઈ નમન, સુરતમાં જ રહીને તમે જે સુરતની અંદર એની ઇકોસિસ્ટમ છે, તમે સુરતને જે ઇકોસિસ્ટમ ઇવોલ્વ થઈ રહી છે એના વિશે તમારું શું ટેક છે ઇન ટર્મ્સ ઓફ સ્ટાર્ટઅપ એન્ડ ઇન ટર્મ્સ ઓફ ઇફ રિસન્ટલી અમે એક સુરતના આઈટી હબ બનાવવા માટે આપણે ટ્રાય કરી રહ્યા છીએ. સો વોટ ઇઝ યોર ટેક ઓન ધેટ? So I moved to Surat about 7 or 8 years ago. बैंगलोर में काम किया है, दिल्ली और बॉम्बे में काम किया है और ऐसे लोगों के साथ जो हम लोग जिनको लीडर्स बोलते हैं, लोग क्रेड के फाउंडर हैं या मेरी पिछली कंपनी एक थी जिसको ट्विटर ने एक्वायर किया था. जब सूरत इनिशियली जब देखा तो द फर्स्ट थिंग दैट यू नोटिस अबाउट अ सिटी इज द इंफ्रास्ट्रक्चर. एंड सूरत आज से एटलीस्ट 7 साल पहले बैंगलोर से बहुत आगे था इंफ्रास्ट्रक्चर में. इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बहुत बेसिक चीज़ें, रोड है, गार्बेज कलेक्शन है, पावर सप्लाई है, वाटर सप्लाई है. बैंगलोर में यूल बी सरप्राइज कि ये सब चीज़ें इतनी डिफ़िकल्ट हैं कि उनको सॉल्व करने के लिए स्टार्टअप्स बनते हैं और वो स्टार्टअप्स बैंगलोर में ही बनते हैं और बैंगलोर तक रह जाते हैं. सो जब आप सूरत में आए तो वी आर ऑलरेडी ब्लेस्ड कि हमारी जो लोकल बॉडी है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है एक्सेट्रा, they really work hard to make sure that the city can keep up with the growing population. So we are probably in the next 4 years will be larger than Ahmedabad in terms of population. So अगर आप 4 मेट्रोज हटा दो और बैंगलोर हैदराबाद हटा दो, सूरत is the 7th city. In the next 3-4 years this will happen. ये इंफ्रास्ट्रक्चर है. इसके साथ साथ जो मैं फर्स्ट अल्पेश भाई से मिला था कुछ 4-5 साल पहले. सूरत में ऑलरेडी स्टार्टअप्स का कल्चर है. स्टार्टअप्स एज इन टेक सॉफ्टवेयर कंपनीज का कल्चर है. अ लॉट ऑफ दीज आर सर्विसेज बेस्ड जो धीरे धीरे अब प्रोडक्ट बेस्ड जा रहा है. और विपुल भाई ऑब्वियसली ऑलरेडी 20 साल से बना रहे हैं, आशीष भाई भी बना रहे हैं पिछले लगभग 15-20 साल से. मैं अभी भी ऐसे स्टार्टअप से सूरत में मिलता हूँ जो मुझे लाइक आई मेट अ स्टार्टअप रिसेंटली कॉल्ड केस पॉइंट. केस पॉइंट AI पे पिछले 10 साल से काम कर रहा है. अब हम सोचते हैं कि यार जब चैट GPT आया तभी AI आया है और द US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस इज अ क्लाइंट ऑफ दैट कंपनी. तो US में कोई इमेजिन करो किसी का कोर्ट केस चल रहा है, वहाँ पे अगर कुछ सर्च हो रहा है तो वो कोड किसी सूरत में बैठ के किसी ने लिखा है. सो अगर सूरत में बैठ करके हम लोग ये कर पा रहे हैं तो वी आर ऑलरेडी देयर. ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई बहुत पीछे रह गए हैं, ऐसा कुछ. वी आर ऑलरेडी देयर. क्वांटिटी में आई वुड से कि 3x पॉपुलेशन है बैंगलोर का या व्हाटएवर 3x पॉपुलेशन है मुंबई का. तो रेशियो में वी कुड बी लाइक क्वांटिटी वाइज वी कुड बी स्मॉल बट क्वालिटी वाइज वी आर देयर. एंड इस पे और ग्रो करने के लिए अभी लेवल प्लेइंग फील्ड है, स्पेशली विद न्यू एंट्रेंट्स लाइक AI आने के बाद. अब किसी के पास कोई एडवांटेज नहीं रह गया है पिछले जो भी 10-20 साल का काम है. तो वी आर ऑल एट अ स्टार्टिंग पॉइंट एंड वी आर एट एडवांटेज. Great number on that. Next question I would like to ask Ashish. So आपने, I mean you have in this industry from decade, right? So almost 25 years in this industry.
तो मेन क्वेश्चन ये है कि जब आपने स्टार्ट किया तब सूरत में इकोसिस्टम बहुत स्मॉल था, इट्स वेरी स्मॉल राइट, एंड देन आफ्टर यू विल सी कि भाई इस 10 साल में 20 साल में जो एंटरप्रेन्योरशिप होती है, जैसे हम बात कर रहे थे विपुल भाई ने बोला कि 10 साल में वेव आता है राइट, सो जो आपने 2-3 डेकेड देखे उसमें आपको क्या लग रहा है एज एंटरप्रेन्योरशिप, क्या चेंज आया एज व्हाट आर द चेंजेस यू सी एज एंटरप्रेन्योरशिप और एज आई मीन एज एंटरप्रेन्योर, अगर आप वर्ल्ड कल्चर की बात करो या जैसे कि कंपनी की बात करो, व्हाट चेंज यू हैव सीन इन द डेकेड? Hi. So basically, if I see एक decade के बाद, as विपुल भाई rightly said कि एक ट्रेंड आता है, तो मुझे लगा कि if I talk about entrepreneurship, तो earlier people were not having that much exposure. I could see कि अभी का जो पिछले 2-3 साल में if I met anyone जो सूरत based founders है, तो normally they have very good amount of exposure और उस because of this internet era, because of this global exposure, अभी किसी के पास ऐसा कोई limitation नहीं है कि they are based in Surat. Like if I talk about my earlier days, it was little difficult to build a team. Like we had to invest a lot in terms of training. Infrastructure was also a challenge. Basically, even internet कभी के time I remember कि 20 kbps used to call like enterprise plan. I think you might have experienced as well. So अभी के time पे सिमिलर टू ऑल अदर सिटीज़, अभी अपना इंडिया का बेंगलोर देख लो तो उसके साथ अगर कंपेयर करेंगे तो सूरत में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मिसिंग है. तो नाउ अगर किसी को अभी कुछ स्टार्टअप करना है तो आई फील कि देयर इज़ नो लिमिटेशन एज अ सिटी ओवर हियर, और जो यहाँ के फाउंडर्स है दे आर इक्वली इनोवेटिव आई वुड से, तो यहाँ पे भी बहुत अपॉर्चुनिटी है. And counter question to that, जैसे 20 साल के पहले let's say we are in services right, तो 20 साल पहले जो आपको let's say जो एक ऐसे सूरत का नाम था and when you interact with the customers, so definitely very hard to convince कि हम गुजरात के एक छोटे से गांव से यहाँ से आते हैं सूरत right, they normally know Bombay, पुणे, Bangalore, they identify that. अभी उसमें कुछ डिफरेंस आया हुआ है. So last decade की बात करें so do you see any changes कि भाई हाँ उसको अगर सूरत बोलते तो उसको पता चलता है कि बंदा सूरत में बैठा है and they know कि सूरत से अच्छा काम होगा. Especially in our case, I think we did not face any issues सूरत की वजह से, because I would say कि location is not an issue. Normally we work with international customers, so उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि we are based in Surat or some other cities. But definitely अगर local customer की बात करें यहाँ की, तो what I have noticed is before 2 decades, the kind of a mindset people were having for tech, let's say tech के लिए जो investment करना चाहिए, they were little reluctant. So पिछले 10 साल से I would say कि there is a drastic improvement in terms of यहाँ पे अगर कोई बंदा local B2B product बना रहा है tech product, तो people are very much open and they are having bit of open mindset about investment tech के लिए, तो वो काफ़ी increase हुआ है ऐसा मुझे लग रहा है. Great, thank you very much for that. विपुल भाई आपने 2005 में जब IT as a very small play द सूरत था, तब से आपने प्रोडक्ट स्टार्ट, वो भी प्रोडक्ट नॉट सर्विस, प्रोडक्ट स्टार्ट की, आपको उसने ग्लोबल लेवल पे स्केल किया, वो भी एक सूरत सिटी में से किया. सो एज अ ह्यूमन और एज अ पर्सन एज अ कंपनी, आप अगर कुछ एक्सप्लेन कर पाओगे कि सूरत का रोल क्या था उसके अंदर एंड व्हाट द सिटी इज अ प्ले रोल टू गो एज अ ग्लोबल एंड मेक अ सक्सेस ऑन दैट. So, जो 2005 में हमने इजी स्टार्ट किया, दैट वाज माय थर्ड वेंचर. आई स्टार्टेड माय फर्स्ट टेक वेंचर इन 1999. वाओ. और उसके बाद सेकंड वेंचर मैंने स्टार्ट किया था 2001. सो आशीष भाई बता रहे थे कि हम लोग तो डायल अप कनेक्शन से, शायद मालूम नहीं किसी ने सुना होगा कि I used to dial up connection for internet. सो हम लोग बॉम्बे कनेक्ट करते थे तब, BSNL का सर्विस होता था. सो आज का टॉपिक है वाई सूरत एज ए सिटी. तो 1999 में मेरे पास ऐसा कोई वाई नहीं था, मैं कोई इतना वाइज बंदा नहीं था कि जो सोचे जिसे दुनिया देखी हो कि बेंगलोर में क्या चल रहा है, यहाँ पे क्या चल रहा है. आई पास आउट माई मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन इन 1998. फिर मेरी शादी हो गई. दैट्स हाउ आई केम बैक टू सूरत. मैं जॉब कर रहा था. आई वॉज वर्किंग इन अ कंपनी इन बड़ोड़ा. 120 लोगों का टीम था तब. एंड आई यूज्ड टू बी अ डेवलपर इन ERP डेवलपमेंट कर रहे थे. कंप्यूटर एसोसिएट्स करके कंपनी होती थी जिसका यहाँ पे काम चल रहा था. सो आई केम टू सूरत एंड देन मेरे पास वाई सूरत एज अ सिटी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था. मेरे पास एक ही ऑप्शन था, लेट्स सूरत. इसीलिए मैंने सूरत से स्टार्ट किया. बट व्हाट सूरत एज अ सिटी. सो
सबसे पहले अच्छी चीज़ क्या है कि सूरत में एंटरप्राइजिंग लोग पहले से थे, सबको धंधा करना था, किसी को जॉब नहीं करनी थी, ये तो कल्चर था। तो वो एक बहुत ही मुझे अच्छा लगा। दूसरा, लेस नॉइस, लो कॉस्ट रिसोर्सेस और लॉयल टीम मेंबर्स, ये 3 चीज़ मुझे सूरत से मिली। जब मैंने इजी छोड़ा तब मेरे साथ ऐसे बंदे थे जो मेरे साथ 15 साल से काम कर रहे थे। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में 15 साल से काम करना, लोग ने बोला कि आपने क्या किया हुआ है, बट दैट इज़ द फैक्ट। और जब बड़ी सिटीज़ में लोग कैश बर्न कर रहे थे, हम लोग यहाँ पे बैठे बैठे कैश जनरेट कर रहे थे, कस्टमर का इनवॉइस जनरेट कर रहे थे। जब लोग फंड रेज करके पोस्ट डाल रहे थे, हम लोग पैसा कमा रहे थे। सो बीइंग इन सूरत हमारा थोड़ा डिफरेंट अप्रोच था टुवर्ड्स द बिजनेस। मुझे ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे जब स्टार्टअप इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है, बहुत लोगों का बिजनेस फंडामेंटल से थोड़ा हटके जा रहा था। अब हमको तो ऐसा मालूम ही नहीं था। सो वी स्टे फोकस्ड एट व्हाट वी वांट टू डू एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड देन वी एबल टू बिल्ड दैट बिजनेस। सबसे अच्छा चीज़ टेक्नोलॉजी में क्या है, जो मुझे ख्याल से कॉन्सेप्ट में मालूम चला जब मैं MCA करके बाहर निकला, तो हमारे बैच में 30 स्टूडेंट्स थे। सो आउट ऑफ 30, 28 हैज़ गॉन आउट ऑफ सूरत। कोई विप्रो में लगा, कोई इन्फोसिस में लगा, कोई सत्यम में लगा, हर जगह में लगा। मैं और मेरा को-फाउंडर रितेश, जिसको सूरत में रहना पड़ा। तो हम लोग सोचते थे कि वो US चला गया, उसको हमें $5000 मिल रहे हैं, मैं यहाँ पे बैठ के वही काम कर सकता हूँ, तो और वो मैं $500 ही कर सकता हूँ। सो वी अंडरस्टूड कि टेक्नोलॉजी में जो आपका डिलीवरी होता है, आप फाइल अपलोड करो और आपका सॉफ्टवेयर पहुँच गया, आप कोड दो लाइसेंस का और वहाँ पे आपका चालू हो गया काम करना। सो वो सब फ्रिक्शंस नहीं थे जो आपको फिजिकल गुड्स में मिलते हैं। तो आई थिंक दैट वाज एन ऑब्जर्वेशन एंड वी एबल टू बिल्ड दैट बिजनेस। सो अभी उस टाइम को इस टाइम को कंपेयर करो तो आपको ऐसा लग रहा है कि सूरत नाउ एज अ सूरत वी आर वेरी मच रेडी टू go and make a global product and sell in global compared to 2005 and this era? Absolutely. मुझे ऐसा लग रहा है कि जो सूरत में कमी थी इन 2010, 2015 प्री कोविड जो कमी थी, वो हमको एक्सपोजर नहीं था। पिछले 5 साल में इकोसिस्टम बहुत अच्छा डेवलप हुआ। नाउ एवरीबडी नोस। पहले हम लोग हमारे टाइम में अगर किसी के पास 50 लाख लेने गए तो वो बोलता कि 2% ब्याज दो, 3% ब्याज दो, और वो पैसे लौटाने पड़ते थे। अब सबको मालूम चलेगा कि आप इन्वेस्टर का पैसा लो, आप बंद कर सकते हो, लौटाने की बात की है। तो ये सब जो एक्सपोजर मिला, और एंड वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ इवेंट्स लाइक दिस इज हैपनिंग, और बहुत सारी कम्युनिटी बिल्ड हो रही है। टाइम हैज चेंज। जब मैं गया था साउथ कोरिया यानोजा के साथ नेगोशिएशन करने के लिए, मुझे प्री मनी वैल्यूएशन, पोस्ट मनी वैल्यूएशन क्या होता है मुझे मालूम नहीं था, ड्यू डिलिजेंस क्या होता है मुझे मालूम नहीं होता। आज आप किसी भी स्टार्टअप फाउंडर से पूछेंगे, उसको सब मालूम है। सो आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट इन दैट रिगार्ड्स। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। आशीष भाई, आप जब आप बात करते हैं टैलेंट की, राइट, सो बिकॉज फॉर अस एसेट इज अ टैलेंट व्हेन यू गो इन सर्विसेज कंपनी, तो आपको लग रहा है कि जो डेकेड था एंड डेकेड के अंदर जो चेंजेस आते हैं, नाउ एरा इज AI, जब अब हम देखते हैं AI के अंदर हर वीक कुछ चेंज हो रहा है, तो as a entrepreneur, as a people who work with us, does they ready to adapt the new challenges? Does they ready to learn the new things? How you see the as a Surat ecosystem? When I'm saying Surat, sitting in Surat, because something get changed in San Francisco, and when you get updated, it might be 2-3 day old news. और जब 5 दिन जाएंगे तो 5 दिन में वो भी चेंज हो गया होगा, right? तो how you see that people are keeping the knowledge updated with the frequency जो चल रही है अभी, तो उसको आपको क्या लग रहा है कि वो जो पहले था और अभी जो हो रहा है, और क्या एज ए सूरत की जो इकोसिस्टम है इन टर्म्स ऑफ व्हेन से एम्प्लॉइज, यूनिवर्सिटी भी आ गई, हमारे एम्प्लॉइज भी आ गए, जो एंटरप्रेन्योर भी है वो, तो आपको उसमें क्या लग रहा है कि वो इतने हम कैपेबल है कि जो नॉलेज चल रहा है, जो ट्रेंड चल रहा है, उसके साथ कॉप अप करके उसको कैसे रख सकते हैं और क्या उसमें हम कर सकते हैं? सो अभी आप देखोगे कि जैसे बिजनेस में नॉइस की बात कर रहे थे, वैसे मुझे ऐसा लगता है कि बिकॉज ऑफ दिस ओवर एक्सपोजर राइट नाउ करंट जनरेशन और द प्रेजेंट फ्रेशर जो ग्रेजुएट हो रहे हैं, और मे बी रिसेंटली जिन्होंने करियर स्टार्ट किया है, तो बिकॉज ऑफ दिस ओवर एक्सपोजर समटाइम्स इट क्रिएट लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन देयर माइंड, डेप्थ में नहीं जा पा रहे वो लोग, मुझे ऐसा लगता है। दैट इज़ व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस कि
पहले बिकॉज ऑफ बिट ऑफ लेस एक्सपोजर समटाइम्स एंड पेस भी थोड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गया बिकॉज ऑफ AI. Lot of things is changing every single day, every month. You get to learn lot of things. So इतना फास्ट होता है तो इवन फॉर एनीवन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कोप अप. उसमें मुश्किल ये आती है कि शायद हम लोग इतना डेप्थ में नहीं जा रहे जितना जाना चाहिए कंपेयर टू इफ आई whenever we work with international customers, especially when they are technical, what mindset they have is whatever they work and whatever they deliver, they make sure that they go in that. This one approach is something it's missing in Surat city, not in all but overall. मुझे लगता है कि इसमें मुझे थोड़ा लगता है कि इम्प्रूवमेंट होना चाहिए. जो पहले थोड़ा अच्छा था ऐसा मेरा प्रायर एक्सपीरियंस है बिफोर लेट्स से अ डिकेड. आपको क्या लग रहा है कि एजुकेशन सिस्टम उनको I mean, let's say if you comment on that, कि education system, if they want to change something to keep up the people will pass out, they will eventually join the organization, right? तो उनको क्या करना चाहिए कि वो भी उनको जब ज्वाइन करो उसके पहले वो they are ready with the knowledge and they are ready to work as a company environment in the organization. अगर आप उस पर कुछ कमेंट कर पाओ कि education system what they can be prepared, I mean, get people ready the people before they join the organization. I genuinely feel that as a culture यहाँ पे अपना सूरत और especially I think गुजरात से सब सिटी की बात करें तो normally if you see in foreign countries a student has to bear their own education का expenses. It looks like a very small thing, but यहाँ पे क्या होता है कि because of that student many of the times take it for granted. उसका education है वो time पे you cannot blame your college, you cannot blame your professors. They only know this month, that month, because now you have access to internet, right? You have access to the course of Harvard University without paying anything. So you can learn anything, everything from internet. Only thing missing is attitude. And why it is not that? Because you are not paying from your pocket. Your father or your parents are paying for that. So maybe वो अगर culture change आ जाए तो then I would say कि काफी Great. So विपुल भाई, आपने बोला कि आपके साथ जो टीम है 15 साल से है. So अभी की जो जनरेशन है जीजन हम जिसको बोलते हैं, राइट, उसके साथ इतना प्रॉब्लम है कि वो 10 मिनट फोन के बिना रह नहीं सकता है. वो फोन में स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, फोकस इज लैकिंग. मैंने जॉब किया है, राइट. तो आप जो 15 साल से एक बंदे को आपके साथ रखा है तो आपको भाई आई कैन सी लॉट्स ऑफ पीपल आर हियर इज स्टूडेंट और मे बी दे आर जस्ट जॉइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन. तो आपको क्या लग रहा है कि उन लोगों को क्या ऐसी स्किल इंप्लीमेंट करनी चाहिए, क्या ऐसा एटीट्यूड इंप्लीमेंट करना चाहिए कि जो लॉन्गर रन पे उनको हेल्प करे, या ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे 15 साल आई मीन डेफिनेटली दे विल अर्न समथिंग और गेट समथिंग, राइट. तो आपने ऐसा क्या बिल्ड किया था कि जो आपके साथ इतने टाइम से लोग जुड़े हुए हैं, प्लस आप उनको क्या एडवाइस करना चाहोगे अभी के लिए, दिस इज व्हाट यू शुड फोकस इंस्टेड ऑफ जो नॉइस हो रहा है अदर देन द वर्क कल्चर एंड एवरीथिंग. सो मेरा एडवाइस वो यंग जनरेशन और स्टूडेंट्स के लिए नहीं है. मेरा एडवाइस जो लीडरशिप टीम है ना उसके लिए है. क्योंकि ये जो काम है वो लीडरशिप टीम करती है. अब मेरे हिसाब से मैंने किसी को हमारी कंपनी में एम्प्लॉय नहीं कहा. मैंने ऑलवेज टीम मेंबर टर्म को यूज़ किया. और हम लोग क्या नॉर्मली देखते हैं कि रिटेन करने के लिए लोग आप अपने एम्प्लॉय को पकड़ने जाते हो, बराबर है. ये ऐसा काम है कि आप एम्प्लॉय जो होता है वो बटरफ्लाई होता है. आज यहाँ पे जाएगा, कल वहाँ पे जाएगा, फिर वहाँ पे जाएगा, बोले वहाँ पे रस अच्छा मिल रहा है. वो एम्प्लॉय बटरफ्लाई जैसा होता है. और अगर हमको बटरफ्लाई को रखना है अपने पास तो हम उसको पकड़ के नहीं रख सकते. आप एक को पकड़ के लाओगे 2 और उड़ जाएंगे, 2 को पकड़ के लाओगे 4 और उड़ जाएंगे, वो कभी हाथ में नहीं आएंगे. अगर आपको वहाँ पे उसको रखना है तो आप गार्डन बनाओ, पेड़ लगाओ, पौधे लगाओ. तो अगर ऐसा एनवायरनमेंट बनाएंगे तो वो लोग आके बैठेंगे और वहीं पे रहेंगे. तो ये काम है वो लीडरशिप का काम है कि आपको कैसे. और दूसरा चीज़ होता है अलाइनमेंट का. बहुत फेमस स्टोरी मैंने पढ़ा था और मैं हर जगह पे ये कोट करता हूँ. जॉन एफ कैनेडी जब वो अपना चंद्र पे भेजने की कोशिश कर रहे थे तो एक मीटिंग में नासा पे पहुँच गए. और जॉन एफ कैनेडी हमेशा टाइम पे जाते हैं और नासा फिर भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे लोग धीरे धीरे काम पे आते हैं. तो ये भाई साहब सुबह 8 बजे पहुँच गए. आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सुबह 8 बजे पहुँचोगे, आपको कौन मिलेगा? जैनिटर मिलेगा, जो वहाँ पे सफाई करता है ना, वो मिलेगा. अब जॉन एफ कैनेडी उनको पूछते हैं कि भाई क्या नाम है तेरा, वगैरह वगैरह. फिर पूछता है तो क्या काम करता है यहाँ पे. और जो वो बंदा जवाब देता है कि हम लोगों को यहाँ से मून पे भेजते हैं.
वो लेवल का अलाइनमेंट चाहिए। उसने ऐसा नहीं बताया कि मैं यहाँ पे सफाई करता हूँ, उसने बोला कि मैं यहाँ से लोगों को मून पे भेजता हूँ। इफ यू एबल टू बिल्ड दैट कल्चर तो सब कुछ पॉसिबल है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लीडरशिप का काम है। Yeah. So basically, I mean, why हम क्यों क्वेश्चन डिफरेंट पूछ रहे हैं, डिफरेंट क्वेश्चन है, डिफरेंट आप सोचो कि क्वेश्चन चेंज हो रहा है, लेकिन इन तीनों का बैकग्राउंड ऐसा है कि एक सर्विस में है, एक बंदे ने कंपनी बिल्ड की, देन सोल्ड आउट टू कोरियन कंपनी, देन वन गाय हु इज डूइंग अ ग्लोबल expansion, plus he's a very good investor. He invested more than I think 25 startup. So next question is that like when we see ecosystem right now, right? So अगर किसी ने fund raise किया तो वो celebration करते हैं, I mean they did something, achieve something great in the life. I mean वो होना भी चाहिए, but they, I mean it's a different ball game when it start to execution, right? So आप जो investment करते हो, आपने 25 startup में investment किया हुआ है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि जो सूरत का इकोसिस्टम है, राइट, तो आपको क्या लग रहा है कि एज अ फाउंडर, आई मीन एज अ इन्वेस्टर, व्हेन यू वांट टू इन्वेस्ट इन द स्टार्टअप, सो डज द सूरत स्टार्टअप इज रेडी, दे जस्ट अंडरस्टैंड द इकोसिस्टम, दे अंडरस्टैंड द बिजनेस, आई मीन डेफिनेटली एज अ सूरत इफ वी सी, हम डेफिनेटली बिजनेस को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि एज अ इन्वेस्टर डू यू थिंक कि जो रेडीनेस होनी चाहिए, जो प्लेटफॉर्म होना चाहिए, वो रेडी है हमारे लिए? सो दो तरीके हैं इन्वेस्टमेंट को देखने के लिए कि क्या ये इन्वेस्टमेंट सेफ होगा वर्सेस क्या ये इन्वेस्टमेंट 100x होगा। जब स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं तो जनरली 100x वाला माइंडसेट होता है कि 10 में से 9 भी फेल हो गए मगर एक 100x हो गया तो अपना काम हो गया। सूरत में आई थिंक सेफ इन्वेस्टमेंट बहुत ईजी है कि अगर मैं बोलूँ कि इसमें आज पैसा डालूंगा 2 साल में 3 गुना 4 गुना हो जाएगा, बहुत ईजिली हो जाएगा। इस टाइप के बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं। रीज़न ये भी है कि थोड़ा फ्रुगैलिटी उनको आता है, कम पैसे में कैसे काम चलाना है, पर्सनल लाइफ में भी, कंपनी में भी, और वही कल्चर बिल्टअप हो जाता है। जो थोड़ा सा मिसिंग है कि बड़े सपने नहीं बोलूँगा, बट बड़े एम्स रखना लोगों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। वो लोग या तो हिल जाते हैं या सोचा ही नहीं है कि इतना बड़ा सोचना है। तो वो आई थिंक 1-2 और सक्सेस स्टोरीज आएंगे। मैं विपुल सर को हमेशा बोलता हूँ कि आपने जो एग्जिट लिया उसका आपने कभी ऐसे हल्ला नहीं मचाया, PR नहीं किया, राइट। अगर वो किया होता तो बहुत लोग इंस्पायर होते हैं उस बात से कि अगर सूरत में एक स्टोरी बन सकती है तो 100 स्टोरीज बन सकती हैं। आई थिंक वो थोड़ा सा एक मिसिंग पीस है सूरत में कि हम लोग $1 बिलियन बोलने में भी ऐसे घबराते हैं कि अरे $1 बिलियन मतलब कुछ रैंडम वर्ड बोल रहा है, ठीक है, मतलब उसको गिनने की जरूरत नहीं कितना है। मेरे साथ हुआ था जब मैं रेस कर रहा था अपने स्टार्टअप के लिए, मैं किसी इन्वेस्टर से बात कर रहा था बैंगलोर में, और मैं ऐसे बोल दिया कि वर्स्ट केस $100 मिलियन का कंपनी तो बन जाएगा, ठीक है। $100 मिलियन इज रफली अबाउट 850 करोड़ रुपीज़। अगर आप किसी इन्वेस्टर को आज बोलो 850 करोड़ का कंपनी बनाना है तो वो फ़ोन काट देगा आपका। उसने वही किया था, उसने फ़ोन काट दिया। मैंने कॉल बैक किया, बोला सर नेटवर्क ख़राब था, फ़ोन कटिए। बोला फ़ोन कटा नहीं, मैंने काटा है। बोला जब तेरा सपना ही 850 करोड़ की कंपनी बनाने का है तो मेरा पैसा कैसे बनेगा। आपको इन्वेस्टर का बिजनेस मॉडल समझना पड़ेगा कि वो आपकी कंपनी का 25% ओन करेगा, वो मल्टीप्लाई होगा तो उसमें से 20% उसको मिलेगा, राइट। तो कंपनी का प्रॉब्लम 5% उसके हिस्से में आएगा। वो बंदा 25 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठा है, मतलब वर्ल्ड के बेस्ट कॉलेजेस गया है, वो क्यों 850 करोड़ का, मतलब 850 करोड़ में से 5% कुछ भी नहीं होता है, 40 करोड़ के आसपास होता है। एंड दिस इज द बेस्ट केस सिनेरियो यू आर प्रोजेक्टिंग कि सब कुछ अच्छा हुआ तो यहाँ पहुँचेंगे 40 करोड़। किसी को नहीं पहुँचना है 40 करोड़, मतलब इन्वेस्टमेंट की दुनिया में वो मायने ही नहीं रखता है। अगर आप इसको दूसरे तरीके से आप इम्पैक्ट देखो, 40 करोड़ रुपए का अगर उसका एग्जिट बनता है या आपका 850 करोड़ का बिजनेस बनता है, कितना ही एम्प्लॉयमेंट आपने जनरेट किया होगा। आज जेप्टो जैसी कंपनी कोरोना में स्टार्ट होती है और जेप्टो के आसपास की जो इंडस्ट्रीज है लगभग 6.5 लाख डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। 5 साल में 6.5 लाख डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, और उसके सामने, और हेंस देयर वैल्यू इज रफली वॉट एवर, कुछ 40,000 करोड़ के आसपास उनकी वैल्यूएशन होगी आज के दिन में। उसके सामने आप 800 करोड़ बोल रहे हो, 2% होता है। तो जब तक हम अपने एम्स को बड़ा नहीं बनाएंगे, और एम इतना बड़ा कि बोलने में भी घबराहट हो, ऐसे किसी के सामने $1 बिलियन बोलने में ऐसे ना पूरा निकलता नहीं है मुंह से एक से, राइट, सोचना पड़ता है कितने जीरोज हैं, वो शायद मिसिंग है सूरत में, ठीक है। हम जितने फ्रीली अपने शादियों में खर्च करते हैं ना, इतना बड़ा सोचते हैं शादी में अक्षय कुमार को बुला लेंगे। मतलब मेरे साथ हुआ था, फर्स्ट वीक इन सूरत, मैं किसी रैंडम जगह पे बैठा था, तो मेरे किसी कजन ने बोला कि उसके पास ऑफिस खाली है तो आपको शेयरिंग में दे देगा वो, एंड आई वाज ओनली वन, कोई टीम नहीं थी, कुछ नहीं। 5 मिनट के बाद रियलाइज हुआ कि पूरी बिल्डिंग इसकी है, ठीक
कि अल्थान में कोई बिल्डिंग थी, 5 मिनट के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि बिल्डिंग इसके फादर की। आई वाज टॉकिंग टू अ 23-year-old, ओके। थोड़ा सा एटीट्यूड में था बंदा, मैं थोड़ा यार मतलब मैनर्स कम है, मैंने ऐसा सोचा, बट फिर रियलाइज हुआ कि ठीक है चलेगा, इसका मैनर्स कम चलेगा। ऐसे बोर्ड पे लिखा था कि ऐसे सचिन तेंदुलकर / अमिताभ बच्चन ऐसे करके कुछ लिखा था। मैंने से कैजुअली पूछ लिया क्या है, बोला हम सोच रहे हैं ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाएंगे। कुछ तो वो लोग का कार्बन क्रेडिट्स का कुछ कंपनी था, पेड़ लगाएंगे एक्सेट्रा। मैंने बोला ठीक है यार, सोचने में क्या जाता है बड़ा। मैं घर आया, अपने कजन से बात किया, बोला यार क्या तेरे फेकू फ्रेंड्स हैं ये सब लिखे। बोला नहीं भैया, पिछले हफ्ते ही उन्होंने अक्षय कुमार को बुलाया था सुबह। वो बंदा जब अक्षय कुमार को बुलाने में इतना खर्च कर सकता है, उसने अपने स्टार्टअप के डेप्थ में जाने में उतना खर्च नहीं किया। ही डिड नॉट इन्वेस्ट इनफ टू हायर अ गुड टेकी फ्रॉम आउटसाइड या फ्रॉम विद इन सूरत। हम लोग अच्छे हैं कुछ चीज़ों में जहाँ पर्सनल ब्रांड बन रहा है, बट जहाँ कंपनी का ब्रांड बन रहा है या जहाँ प्रोडक्ट बन रहा है, हम लोग अभी भी थोड़े मिसिंग है। मतलब वो शायद किसी को देख करके सीखने की ज़रूरत है कि यार ये करना कैसे है। आज बैंगलोर मुझे याद है, पहली बार मेरे पेरेंट्स आए थे और एक होर्डिंग बोर्ड पे पाइथन का ऐड लगा हुआ था। ओके, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। ईबे का ऐड था, हायरिंग पाइथन डेवलपर्स। एंड माय डैड रिएक्टेड कि ऑनलाइन में सांप भी दिखता है क्या। ही न्यू ईबे इज सम ई-कॉमर्स। ओके, बहुत पुराना कुछ पता था उनको। पाइथन एक तरीका का सांप होता है, बस इतना ही पता था उनको। मगर पॉइंट ये है कि डेवलपर हायरिंग के लिए बिलबोर्ड लगाया था ईबे ने। यहाँ पे हम लोग नहीं सोच पाते हैं उतना कि क्या हायरिंग इतना इंपॉर्टेंट है। जब अभी अल्पेश भाई बोल रहे हैं कि द टीम इज आवर असेट, तो फिर उसी असेट को अट्रैक्ट करने में पूरा पैसा खर्च होना चाहिए। और दूसरा ये होता है कि क्या आप रिवॉर्ड शेयर करने के लिए रेडी हैं, कि कितना % आपका एम्प्लॉय ओन्ड है कंपनी में। ईसॉप पूल, मतलब बैंगलोर के स्टार्टअप्स में इट इज कंपलसरी कि आप 10% इनिशियली ईसॉप का पूल बनाएं और वो ईसॉप पूल एक्चुअली देना स्टार्ट करें एम्प्लॉयज़ को। मैंने देखा था एक कंपनी में कुछ 2700 करोड़ में बिकी थी, बॉम्बे की कंपनी थी, और बिकते समय सिर्फ 4% ईसॉप पूल यूटिलाइज हुआ। आपने ईसॉप पूल बना तो दिया, बोलने में बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने 10% एम्प्लॉयज़ के लिए रखा हुआ है, बट सिर्फ 4% एम्प्लॉय को आप दे पाए हो आज तक। या तो आपने वैसे एम्प्लॉयज़ को अट्रैक्ट नहीं किया, या आप सोचते हो कि ये देना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जब तक आपको रिवॉर्ड, मतलब बड़ा एम बनाओ, उनको गाइड करो वहाँ तक जाने के लिए, और फिर उनको रिवॉर्ड भी दिखा दो कि यार ये होगा, और फिर आप शांति से बैठ करके आप आराम से, मतलब कंपनी तो चल जाएगी इफ़ यू हायर्ड दैट थिंग। और जहाँ सूरत मेरे को लगता है रेडी नहीं है, वो है आउटसाइडर्स को अट्रैक्ट करने में। अगर आप वर्ल्ड की कोई भी टॉप सिटीज़ देखो, सैन फ्रांसिस्को में आपको अमेरिकन नेटिव्स नहीं मिलेंगे। न्यूयॉर्क में, मतलब अमेरिका में नेटिव्स क्या होते हैं इसका भी कोई डेफिनेशन ही नहीं है। आप बॉम्बे देखो, बॉम्बे के टॉप 100 लोग में मराठी लोग नहीं हैं। यू विल फाइंड पीपल फ्रॉम राजस्थान, यू विल फाइंड पीपल फ्रॉम गुजरात, यू नो, इंक्लूडिंग मुकेश अंबानी एंड अदानी, एवरीबडी, राइट। वो जब तक हम लोग अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे कि फर्स्ट जनरेशन माइग्रेंट्स आर बिकमिंग, you know, rich and they are starting new stuff in the city, उस दिन हम लोग बोल पाएंगे कि सूरत completely ready है उस चीज़ को embrace करने के लिए। और नहीं तो जो लोग ऑलरेडी सूरत में रहते हैं ना, वो लोग बहुत कंफर्टेबल हो चुके हैं, and they have hundreds of things to attend। आज दीदी के घर जाना है वो देने, आज चाचा के घर पे पार्टी है, कुछ रैंडम इवेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। और आप इतने ज़्यादा कंफर्टेबल हो चुके हो कि आपको रियलाइज ही नहीं हो रहा है कि आप एक रेस के पार्ट हो, और वो रेस कोई और दौड़ रहा है, रात को वो दौड़ रहा है, जब आप पार्टी कर रहे हो वो दौड़ रहा है, जब आप अपने घर के सेलिब्रेशन में हो, रिचुअल्स में हो, वो दौड़ रहा है। और जब तक एक बंदा बहुत शिद्दत से वो रेस नहीं दौड़ेगा कि जहाँ वो $1 बिलियन कंपनी क्रिएट करे, तब तक वो फेमस नहीं होगा कि यार सूरत में। आज हम लोग को डायमंड में 2-3 फैमिलीज पता है जो बैंगलोर में भी फेमस है, जो यूएस में भी फेमस है, राइट। टेक्सटाइल में 1-2 फैमिलीज हैं जो सूरत के बाहर भी फेमस हैं। बट सॉफ्टवेयर में इवन दो वी विल हैव लाइक द बेस्ट क्लाइंट्स इन द वर्ल्ड, हमने शायद उतना बड़ा गेम अभी तक नहीं खेला। और जब तक वो 1-2 स्टोरीज नहीं निकल के आएंगी, नेक्स्ट जनरेशन को वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा कि यहाँ से हो सकता है। आज यू नो, लास्ट पॉइंट, फ्लिपकार्ट की ऑफिस है कोरमंगला में। कोरमंगला वर्ड सबने सुना है, पूरे इंडिया ने सुना है कोरमंगला क्या, कहीं तो है दुनिया का कोई कोना है जहाँ बहुत सारे स्टार्टअप्स बनते हैं। जैसे सिलिकॉन वैली सुना है, वैसे कोरमंगला बना। फ्लिपकार्ट की जो ऑफिस थी उसी में बाद में पेटीएम मनी स्टार्ट हुआ, उसी में बाद में फ़ोनपे स्टार्ट हुआ। मैंने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया, वो भी उसी बिल्डिंग में, यू नो, अब फिलहाल उनका ऑफिस उसी बिल्डिंग में। मतलब जब कहीं से कुछ अच्छा स्टार्ट होता है ना, तो उस बिल्डिंग की भी कीमत लगने लग जाती है।
अगर लोग उस बिल्डिंग की कीमत लगा रहे हैं, उस स्ट्रीट की कीमत लगा रहे हैं, तो शहर तो ऑटोमेटिकली फेमस हो जाएगा। वो एक दो स्टोरीज अगर आ गए अगले 5-6 साल में, देयर एटलीस्ट 4-5 स्टोरीज दैट आई नो जो लोग शांति से बना रहे हैं सूरत में बिना ज़्यादा शोर मचाए। एक दो स्टोरीज अगर आ जाएंगे तो हम लोग कम्प्लीटली रेडी हो जाएंगे कि एक्चुअल स्टार्टअप कैपिटल बनने के लिए। आई कैन कमेंट टू थिंग्स। एक आपको सपना बड़ा देखना है, दूसरा आपको भागना है, तीसरा आपका जो रिवॉर्ड है उसको शेयर करना है। इफ आई कैन टेक ऑफ दैट फ्री, दैट्स विट मेक द सूरत को रेडी कि आप रेडी हो करने के लिए, राइट। सो आगे बढ़ते हैं कि हम ग्लोबल सॉल्यूशन, आपने जैसे बिल्कुल भी आपने ग्लोबल सॉल्यूशन बनाया, राइट। सो बेसिकली मेरे को हमको ये अंडरस्टैंड करना है कि अभी हम बोल रहे हैं मेक इन इंडिया, राइट। मेक इन इंडिया जब तक जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आई एम कमिंग ऑन द एरा कि जहाँ पे हम कंपनी को डिजिटलाइज करते हैं, कंपनी को पेपरलेस करते हैं। आपने उसको वो सेम थिंग की हॉस्पिटल के लिए। तो आपको क्या लग रहा है कि इंडिया, या जैसे इंडिया को भी भूल जाते सूरत, कि सूरत जो हॉस्पिटल इंडस्ट्री है वो क्या रेडी है पेपर फ्री होने के लिए, या जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, क्या उसका एडॉप्शन जो है वो आपको लग रहा है कि अगर हम जैसे जो बंदा सूरत में बैठा है, अगर सूरत से ही स्टार्ट करेगा, उसके लिए अगर यहाँ पे 100 होटल में बोल रहा हूँ 100 होटल मेरा सॉफ्टवेयर यूज कर रही है, तो एक वो अलग फीलिंग होती है, क्योंकि आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, आपके सब कस्टमर है, दे नो अस, राइट। वो इजीली कर सकते हैं कि मैं फेस टू फेस जा सकता हूँ। तो आपको क्या लग रहा है कि जो आगे का ट्रेंड था और अभी जो है उसकी बजाय उसकी जो एडॉप्शन है वो सही जा रहा है, या उसको ग्रो कर रहे हैं, या देयर आर द चैलेंजेस टू डू दैट? आशीष भाई ने बताया कि पहले ऐसा था कि अगर आप कोई लोकल बिजनेस से बात कर रहे हो तो उनको दे माइट बी शाय इन्वेस्टिंग इनटू टेक्नोलॉजी। अभी क्या हो गया है कि जो न्यू जनरेशन आ रही है वो सब समझते हैं टेक्नोलॉजी का पावर। और हम लोग जब सेल्स के लिए पहले जाते थे तो पहले इट वाज डिफ़िकल्ट टू कन्विंस, क्योंकि जो होटल को हम लोग टारगेट कर रहे थे वो होटल सॉफ्टवेयर के प्राइस को एज एन एक्सपेंस देख रहे थे। हमने उनको समझाया कि भाई कोई एक्सपेंस नहीं है, अगर आप नहीं टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करोगे तो आपके बाजू में 4 होटल है जिसमें से 2 ऑलरेडी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, वो आपसे आगे निकल जाएंगे। एंड जिन्होंने टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट नहीं किया दे वेंट आउट ऑफ द बिजनेस रियली, देन दे रियलाइज। सो स्लोली अभी आई थिंक टेक्नोलॉजी का पावर सबको मालूम चल गया है, नॉट ओनली हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री, एवरी बिजनेस अंडरस्टैंड्स द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी। और जो न्यू जनरेशन आ रही है उनको मालूम है। आज कितने लोग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हाथों से लिखते होंगे? आई थिंक 0%। मैं नहीं मानता कि कोई लिखता होगा। सबको स्मार्टफोन चाहिए, ये भी टेक्नोलॉजी है, राइट। सो टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर्स बहुत आगे बढ़ रहा है। एंड अभी एआई का अब देखो, पहले क्या होता था कि अगर यूएस में कुछ होता था तो हमको जानने पहचानने में 2-3 साल लग जाते थे, ठीक है। अब अभी आपने बताया कि अगर सैन फ्रांसिस्को में कुछ हो रहा है, सिलिकॉन वैली में कुछ हो रहा है, अपने को एटलीस्ट दूसरे दिन मालूम चल जाता है। कभी कभी तो तुरंत मालूम चल जाता है, कभी कभी तो ट्रम्प बोलते नहीं उससे पहले अपने को मालूम चल जाता है। सर जो कम्युनिकेशन चैनल सब डेवलप हुई और टेक्नोलॉजी का नो हाउ सबको आया, एंड थैंक्स टू मोबाइल, दिस इज अ सुपर कंप्यूटर बेसिकली। हम लोग जब स्कूल में थे 10th स्टैंडर्ड में, तो हमारे स्कूल में एक कंप्यूटर लगा था। अगर उस कंप्यूटर को हमको देखने भी जाना था तो हमको जूते वूते सब निकाल के जाना पड़ता था। मुझे मालूम नहीं क्यों ऐसा था, बट दैट्स द रियलिटी। तब ऐसा था कि सिर्फ साइंटिस्ट लोग कंप्यूटर यूज करते थे, बराबर। अभी तो छोटे 2-3-4 साल के बच्चे भी यूज करते हैं। एवरीबॉडी हैज अंडरस्टूड द पावर ऑफ द टेक्नोलॉजी। एडॉप्शन काफी इजी हो गया है, मुझे ऐसा लगता है, एंड इंक्लूडिंग हॉस्पिटल इंडस्ट्री आल्सो दैट हैज हैपेंड। इनफैक्ट चाइना में एक होटल है अलीबाबा ग्रुप का जिसमें 0% इज एम्प्लॉयड, फुल्ली ऑटोमेटेड रोबोट ड्रिवन होटल है। ग्रेट। सो आशीष भाई, अभी हम मैं स्टॉल पे था, सो वी हैव द कोच 52 नंबर, अगर कोई है तो विजिट करना उनको। 42 है, 42 52 है, वो स्टॉल नंबर पता है मेरे को, 52 है। सो काउंटर चेकिंग वहाँ पे हम खड़े थे, वन जेंटलमैन, आई मीन इज गुड, वेरी गुड इन टेक्सटाइल, ही केम एंड से इंडिया में टेक्सटाइल का बिजनेस 42,000 करोड़ का है, एंड उसका सूरत में 99% शेयर सूरत का है। आप टेक्सटाइल के लिए कुछ बनाओ, एंड आई वाज लुकिंग फेस, देख रहा था। सो क्वेश्चन वहाँ से जनरेट हुआ कि आपको क्या लग रहा है कि अगर हम डायमंड इंडस्ट्री भी देखें तो बहुत बड़ी है इन टर्म्स ऑफ नंबर,
तो ऐसा मैंने स्टार्टअप नहीं देखा कि जो स्पेसिफिकली जो वेरी स्पेसिफिक हो और बहुत बड़ा नाम बनाया हो टेक्सटाइल और डायमंड के अंदर। हाँ, बहुत सारे लोग हैं जो छोटा मोटा ERP बनाते हैं, छोटा मोटा सॉफ्टवेयर बना के वो स्पेसिफिक एक किसी डायमंड वाले को बेच रहे हैं या किसी टेक्सटाइल को बेच रहे हैं। तो आप तो 25-26 साल से हो, तो आपको कभी आइडिया नहीं आया कि मैं सॉफ्टवेयर टेक्सटाइल डायमंड वालों के लिए बनाऊं, या व्हाट आपको क्या लग रहा है व्हाट आर द चैलेंजेस? क्यों हम सूरत में बैठे हैं, सूरत में जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा 2 बिजनेसेस सूरत में है, उसके लिए हम सोच नहीं रहे कि उसको ट्रांसफर करूं। हम बाहर अकाउंटिंग को ट्रांसफर कर रहे हैं, हॉस्पिटल को ट्रांसफर कर रहे हैं, टेक्सटाइल और डायमंड को क्यों नहीं कर रहे? तो आपको क्या लग रहा है व्हाट इज द चैलेंजेस, और क्या लग रहा है कि माइट भी क्या माइंडसेट चेंज होना चाहिए कि जो लोग जो एंटरप्रेन्योर है उस इंडस्ट्री में वो बनाने के लिए स्टार्ट इंस्पायर हो? तो पहले तो एक चीज़ है कि मार्केट साइज, अगर आपने जो फिगर बताया है वही अगर गिन के चले तो इट्स ओवरऑल द मार्केट साइज। उसके लिए अगर आप टैक्स स्पेंडिंग देखोगे तो इट मे बी लिटिल लेस, राइट? तो बोल रहे हो 42,000 करोड़ कम आपके लिए? नहीं, 42,000 इज नॉट फॉर टेक, राइट? इट इज ओवरऑल मार्केट साइज। तो उसका टेक का बजट है, इट इज, अगर आपका ड्रीम बड़ा है तो इट मे नॉट बी सफिशिएंट फॉर मैनी, बट इन माय केस सो वी ट्राइड इन अर्लियर डेज, बट तभी क्या था कि वो टेक्नोलॉजी एडॉप्शन के लिए या तो टैक्स स्पेंडिंग के लिए उनका माइंडसेट नहीं था। अभी के लिए भी अभी ऐसा है कि वो जो ट्रांजिशन है ना, जो चेयर पे बैठे हैं, मेनी ऑफ द टाइम्स दे सेज दैट यू नो आई हैव हैंड ओवर माय व्हाटएवर डिसीजन मेकिंग का जो भी है एक्सेस मेरे लेट्स से बच्चे को दे दिया है, बट स्टिल आई थिंक दे आर स्टिल हैविंग दैट इंटरफेरेंस डिसीजन मेकिंग में। उसकी वजह से क्या होता है कि काफ़ी टाइम वो टेक्नोलॉजी स्पेंडिंग का जो डिसीजन है वो उसमें थोड़ा दिक्कत होता है, और बिकॉज वी आर डीलिंग विद इंटरनेशनल प्लेयर तो हमेशा वो कंपैरिजन हो जाता है कि इट्स इजी टू कन्विंस इंटरनेशनल कस्टमर जो टेक्नोलॉजी के लिए उसका माइंडसेट डिफरेंट है, अच्छा है या तो ओपन है, कंपेयर टू यू नो सिटी लाइक अस की जहाँ पे थोड़ा अभी बदल रहा है। आई मीन आई एम ऑप्टिमिस्टिक, अभी कर सकते हैं ऐसा नहीं। और दूसरा चीज़ कि यहाँ पे ऐसा होता है कि पीपल आर वेरी मच इन rigid may not be the right word, but उनको ऐसा लगता है कि my business process is something I don't want to change और ये सही है। But many of the times when you actually sign up for any software, you might need to tweak your business process a little. तो उसकी वजह से काफ़ी टाइम वो एडोप्शन प्रोडक्ट का नहीं हो पाता है। तो डायमंड फील्ड में मैंने सुन रखा है कि काफ़ी प्लेयर ने ट्राई किया है, बट मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स आर यू नो आस्किंग कि भाई मेरे को मेरे हिसाब से कस्टम सॉल्यूशन बना के दो, समथिंग लाइक दैट। तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि प्रोडक्ट एक बन के निकल के नहीं आ रहा है। सो देयर आर 2 पॉसिबल रीजन, एक मार्केट से आपका जितने भी आई एम नॉट श्योर टेक्सटाइल डायमंड कितने बैठे हैं, अगर उसको कुछ मैसेज आपको देना हो कि सूरत को हब बनाने के लिए आप कुछ माइंडसेट चेंज करो, तो क्या देना चाहोगे? मुझे लगता है कि थोड़ा फ्लेक्सिबल अप्रोच रहना चाहिए इन टर्म्स ऑफ कि भाई एक अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट लेके आ रहा है, कोई भी बंदा, नॉट मी, सो कोई भी बंदा, तो यू नो लुक एट इट विद अ ओपन माइंडसेट। देखो उसकी वजह से अगर आपकी प्रोसेस में थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है तो यू शुड बी ओपन विद दैट, यू नो थिंक ऑफ लॉन्ग टर्म प्रॉफिट, लॉन्ग टर्म विजन। जैसे विपुल भाई ने बताया कि वो जो हॉटेल वाला बंदा है इनिशियली उसको वही लगेगा, यू नो रिमेंबर दोस डेज कि जहाँ पे SBI बैंक में सॉफ्टवेयर आया था, दोस पीपल वर वर्किंग सिंस मैनी ईयर्स, अचानक से कंप्यूटर पे उसको माइग्रेट कर दिया तो उसको तो ऐसा ही लगा था कि यू नो इट इज़ ऑफ नो यूज़। सेम अभी AI में हो रहा है, बट आपको वो एडोप्शन करना पड़ेगा। ये तो अभी बहुत बेसिक चीज़ हो गया सॉफ्टवेयर का। अभी AI के समय में तो even you have to be more flexible, right? More and more flexible. So only thing is, you know, open mindset. So last question to all of 3 of you. यहाँ पे स्टूडेंट भी है, एंटरप्रेन्योर भी है, पेरेंट्स भी है। अगर आपको कुछ एक चीज़ ऐसी बोलनी चाहिए, आई मीन एडवाइस देनी या बोलनी है कि जो उनको ध्यान में रखने की, आई मीन वी ऑल पीपल विल ट्राइंग टू मेक द और डॉट इन द वर्ल्ड मैप के भी हम सूरत से ये कर रहे हैं। वी ट्राइंग विद मेनी कम्युनिटीज लाइक साजू भी चला रहे हैं हम, सो वी आर द सूरत IT एसोसिएशन, बहुत सारे ग्रुप है एंड वी आर डूइंग फ्रीक्वेंटली इवेंट्स एवरीथिंग ऑन दैट एंड वी ट्राइंग टू पुट द डॉट ऑन द मैप कि भाई इंडिया में ग्लोबल के लिए में करना है कुछ। तो उसके लिए आपको कुछ एक एडवाइस देनी हो सबके लिए कि हाउ एज फ्रॉम द सूरत व्हाट वी कैन डू कि जहाँ से हम वो एक डॉट क्रिएट कर पाए। एनीवन, आई मीन इट्स अ सक्सेस स्टोरी व्हिच वी हैव टू क्रिएट, राइट? अगर हमें कुछ और डॉट क्रिएट करना तो कैसे कर पाए, और इफ एनीवन एडवाइस यू वांट टू गिव? I think you know together we can make it happen for sure. अभी आप देखोगे, you know personally I started my career in 2001 and 2005 में सूरत माइग्रेट होके मैंने I started this venture. So अभी से लेके अब तक आप देखोगे तो we have reasonably established ecosystem compared to you know before a decade or before 2 decades, right?
एज यू राइटली सेड काफ़ी सारी कम्युनिटीज है जो आपके इंटरेस्ट में काम करेगी. अभी आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, इफ यू हैव एनी गुड आइडिया, इफ यू नीड इन्वेस्टमेंट, देयर इज इकोसिस्टम. Obviously we are bit far from those metro cities like Bangalore, but reasonably we are in a good shape, right? So sky is the limit. Only approach I would say we have to keep it in mind as a student or as an individual professional who is in this field is stay agile and stay hungry for the knowledge. I mean आपको learn करने रहना चाहिए कि भाई यहाँ पे अभी ऐसा नहीं चलेगा कि जहाँ पे आप हो वो पोजीशन को मेंटेन करने के लिए भी you have to learn a lot. ऐसा नहीं चलेगा अभी कि इट्स ऑप्शनल, इट इज़ अ मैंडेटरी. स्पेशली बीइंग इन टेक इंडस्ट्री आई वुड से कि इट्स मस्ट, राइट? तो स्टे अजाइल एंड स्टे हंग्री फॉर मोर नॉलेज. यस विपुल भाई. मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, एक शेयर अर्ज करना चाहता हूँ उसके लिए कि चाहोगे तो आसमान में भी कर दोगे एक सुराग, चाहोगे तो आसमान में भी कर दोगे सुराग, तबीयत से पहले एक पत्थर तो उठाया जाए. आई थिंक लोग यहाँ पे दो क्लास में देखता हूँ सूरत में. एक क्लास है जो फॉरेन ट्रैवल करती है, ठीक है. आई मेट 15-year-olds जो दिल्ली नहीं गए हैं बट थाईलैंड, सिंगापुर, यूरोप गए हैं, ठीक है. और दूसरी क्लास है जिसके लिए सूरत से बाहर जाना मतलब बॉम्बे, और बॉम्बे के आगे लाइफ नहीं देखा है वो लोग ने, ठीक है. कोई अंकल रहते हैं, कोई मासी रहती है बॉम्बे में, वहाँ जाते हैं समर्स में, वापस आ जाते हैं. अब मेरा बर्थ बिहार का था, तो बिहार में अपॉर्चुनिटीज़ इतनी कम है कि आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा, राइट? एंड हेंस यू सी सो मेनी IAS ऑफिसर्स कमिंग फ्रॉम दैट साइड. हम जब एजुकेशन के लिए बाहर जाना स्टार्ट करेंगे और कॉम्पिटिटिव हो करके बाहर जाना, नॉट कि सूरत में पढ़ाई अच्छी नहीं है तो मिट्टी बाई में एडमिशन ले लेते हैं या पुणे के किसी कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं. इंडिया में भी आप सूरत में देखोगे बहुत सारे बच्चे हैं जो कनाडा और यूके जाते हैं, यूएस नहीं जा पाते हैं, ठीक है. पेरेंट्स को लगता है तीनों इक्वल है. यूएस इसलिए नहीं जा पाते क्योंकि स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है. यूएस में जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है, कॉम्पिटिटिव है, आपको एडमिशन नहीं मिल रहा है, दैट्स द ट्रुथ. लोगों को लगता है मेरा बेटा फॉरेन गया है, ठीक है. और यूके में किसी रैंडम कॉलेज में, मैनचेस्टर में या कोई ऐसे शहर जो हमने सिर्फ क्रिकेट में वो काउंटी क्रिकेट होता है ना, उससे उस समय उसका शहर का नाम सुन रखा होता है, वैसे जगह पे वो लोग जाते हैं. या कनाडा में 3-4 शहर हैं उसमें वो लोग जाते हैं. जब तक हम लोग कॉम्पिटिटिवली अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे बाहर, आइदर फॉर कॉलेज और फॉर जॉब्स, तब तक वो देख नहीं पाएंगे कि व्हाट डज इट टेक टू आउटशाइन द वर्ल्ड. और ये तब होगा जब हमें ये रियलाइज होने लग जाए कि सूरत की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत छोटी हैं. सूरत के in certain at least in education I would say कि हमारे पास there is no educational institute of national importance. मतलब जब डायमंड यहाँ है, टेक्सटाइल यहाँ है, तो इंडिया का बेस्ट निफ्ट कॉलेज यहाँ क्यों नहीं है? वो बैंगलोर या जयपुर में क्यों है, राइट? जब हजीरा प्लांट, हजीरा इतना बड़ा है, every company you can think of, NTPC, ONGC, GAIL, SR Steel, everybody is there. So कोर इंजीनियरिंग के अच्छे कॉलेजेस सूरत में क्यों नहीं है? NIT सूरत को सूरत वालों से ही इज्जत नहीं मिलती. आज भी SVR सबको बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है. बट NIT सूरत एट वन टाइम, आई कुडंट गेट इनटू NIT सूरत, मेरा रैंक बहुत खराब था इंजीनियरिंग में. बट सूरत के लोगों को रियलाइज भी नहीं हुआ कि वो क्या है, राइट? NIT सूरत को बाकायदा बोर्ड लगाना पड़ा, एस्टैब्लिश्ड इन 1968. वो बोर्ड सिर्फ 2 साल पहले लगा है. लोगों को पता ही नहीं था कि यार वो कॉलेज का इम्पोर्टेंस क्या है. वो हम लोग जब रियलाइज करेंगे कि शहर में अच्छा एजुकेशन नहीं है, बच्चों को बाहर भेजना है और बाहर ऐसी जगह भेजना है जहाँ बच्चा अपनी काबिलियत से जाए, तो बच्चे को भी समझ में आ जाएगा कि दुनिया कैसी है और पेरेंट्स को भी समझ में आ जाएगा. वो जब बच्चा वापस आएगा, दे विल वांट टू क्रिएट समथिंग दैट इज वर्ल्ड क्लास, राइट? मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ. मिराकी बोल के एक कैफ़े है सूरत में, सबने पता है, ठीक है. मिराकी का जो ओनर है, ही डजंट नीड टू रन अ कैफ़े टू रन हिज लाइफ. वो एक लैंड रोवर में आता है, आउट ऑफ पैशन ही इज क्रिएटेड दैट प्लेस, ठीक है. डोम बोल के एक पिज्ज़ा प्लेस है, सबको अभी कपीश नाम चेंज हो गया है, राइट? ये सब चीज़ें ना पैशन प्रोजेक्ट्स हैं विच आर नाउ इकोनॉमिकली सस्टेनेबल, बट दीज हैव बीन पॉसिबल बिकॉज समबडी सॉ कि वर्ल्ड में और क्या हो रहा है, ठीक है. और अब मिराकी आप सरप्राइज हो जाएंगे कि अभी रिसेंटली निखिल कामत का एक पॉडकास्ट था जीरोदा का फाउंडर, और उसमें सबको पूछा गया कि बेस्ट कैफेज कौन से हैं सूरत इंडिया के. एंड ये सब कैफ़े ओनर्स हैं जिनसे पूछा जा रहा है इंडिया के बेस्ट कैफ़ेज कौन से हैं.
तो जिसमें मिराकी का नाम लिया जाता है, सूरत के एक कैफ़े का नाम लिया जाता है, और सूरत में कैफ़े का कल्चर बहुत आगे, कॉफ़ी का कल्चर बैंगलोर से बहुत आगे है, बट हम शायद मानने के लिए रेडी नहीं होते हैं। शायद एक बंदे ने स्टार्ट किया, जब मैं 2017 में आया था, एक मिराकी था SNS प्लैटिनम नाम की एक बिल्डिंग में, छोटा सा 500 स्क्वायर फीट का कैफ़े था, अब वो 3 में कन्वर्ट हो गया, उसके सामने स्टारबक्स है, कोई नहीं जाता है स्टारबक्स, राइट। सो हमारे में वो कैपेबिलिटी है। क्या हम इनफ स्टोरीज वैसे बिल्ड कर सकते हैं कि कैपेबिलिटीज़ ज़्यादा लोग इंस्पायर हो सके। एक सूरत के बच्चे को सोचना ना पड़े कि अगर मुझे कोई अच्छा करना है तो मुझे बॉम्बे जाना ही पड़ेगा, मुझे पुणे जाना ही पड़ेगा, मुझे US जाना ही पड़ेगा। सेम बच्चा जो यहाँ पे कुछ नहीं कर पा रहा है, 70s में उसके मार्क्स आते हैं, 60s में आते हैं, वो कुछ कुछ करके कनाडा पहुँच जाता है, और कनाडा में 10 साल 15 साल के बाद बोलता है यार आई ओन 2 मोटेल्स, मेरे 2 पेट्रोल पंप हैं, 3 घर है, 4 गाड़ी है, सब मर्सिडीज़ हैं। ऐसा कैसे हो जाता है? वो तो इनकेपेबल था, राइट। 60% आने वाले बच्चे ऐसे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो जब एक अपने ईज से, कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं ना, उनको दौड़ना आ जाता है। अगर वो दौड़ने की कैपेबिलिटी आप बहुत पहले डाल दोगे बच्चे में, तो ही विल वांट टू कम बैक टू ऑब्वियसली सब कोई चाहते हैं कि पेरेंट्स के साथ रहें, और जो भी मदरलैंड होता है वहाँ सब रहना चाहते हैं, मजबूरी में लोग बाहर रहते हैं। मगर अगर अर्ली लाइफ में वो लोग वो एक्सपीरियंस करेंगे, वापस आएंगे, तो सूरत अपने आप इट विल स्टार्ट ग्रोइंग। और शायद डायमंड इंडस्ट्री वैसे ही बनी है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री वैसे ही बनी है। ऐसा नहीं था कि जो सूरत में ओरिजिनली जो लोग थे, एक डायमंड इंडस्ट्री आई वुड बिलीव कि काठियावाड़ी कल्चर से जो लोग आते हैं वो लोग ने बनाया। दे आर नॉट नेटिव्स ऑफ सूरत, ओके। नेटिव्स ऑफ सूरत क्या करते थे? शिपिंग इंडस्ट्री, राइट, कि वो शिप रेकिंग इंडस्ट्री या शिप मेकिंग इंडस्ट्री में थे। वो इंडस्ट्री खत्म हो चुकी है सूरत से, तो जो भी यहाँ बना है वो भी माइग्रेंट्स लेके आए हैं। तो अगर हम अपने बच्चों को माइग्रेंट बना दें सूरत के लिए कि बेटा 2 साल बाहर जाके आओ, 5 साल बाहर जाके आओ, तो माइंडसेट बहुत अच्छा आ जाएगा सूरत। Great. Take a few questions from the audience, like mostly 1 or 2 questions, if anyone have. Thank you, panelists. Vipul bhai, Ashish bhai, Naman bhai, thank you for answering the questions, and Alpesh bhai for asking the questions. હું અત્યારે એટલા માટે આવ્યો છું કે અલ્પેશભાઈએ ભલે સવાલ પૂછ્યા હોય પણ એ પોતે પણ આ બધા ઘણા બધા સવાલના જવાબ આપવા માટે સક્ષમ છે, એટલે તમારા સવાલ કોઈ સ્પેસિફિક પેનલિસ્ટ ચારેમાંથી કોઈને પણ એડ્રેસ કરી શકો છો, અથવા તેઓ ચૂઝ કરી શકે છે કે કોણ જવાબ આપશે. પ્લીઝ આસ્ક યોર ક્વેશ્ચન્સ. Hello, myself Ruchit Shah. I'm an iOS developer and I have two questions. First question for Ashish sir and Vipul sir, and the last question is for Naman sir. So the first question is, in next 5 years, do you see AI creating more jobs in Surat, and what are the local talents Surat have to prepare for it? Another question for Naman sir. Do you think AI will bridge the gap between junior and senior? So we have our own venture called Narula AI Studio, and we started it before ChatGPT launched, right? So we are working in AI domain since 4-5 years, and I would say AI is going to create employment everywhere, right? It's just a transition. Problem is, even myself, I cannot visualize that, what all changes AI will bring. I can give you the answer, but it cannot be definite. Today I'll say something, tomorrow I don't know, what sort of problem it will solve, right? So, but there is ample amount of opportunity AI will create for sure. If you see any industry, technology revolution, let it be, let's say, Surat, we are from Surat, so let's consider diamond industry, right? Before like 20 years, diamond industry were using limited technology. So a lot of machines came, a lot of technology came. Because of that, the overall employment has been generated, right? More employment has been generated. So I would say that because of AI, the kind of work or the type of work will change, business model will change, but yes, opportunities will be there, and Surat, I think Surat will make a huge difference, and Surat will be a part of this journey. I really don't know कि क्या होगा, मैं विजुलाइज कर सकता हूँ. जिस दिन मोटर कार आई ना, उस दिन हॉर्स कार्ट का जो ड्राइवर था उसका जॉब चला गया. लेकिन मोटर कार काफ़ी लोग खरीदते गए, धीरे धीरे मार्केट बड़ा हुआ, ड्राइवर्स आने लगे, और वो एक एम्प्लॉयमेंट वो भी बन गया अनएम्प्लॉयड. ठीक है, तो ऐसा ही जैसे आशीष भाई ने बताया, ऐसा ही कुछ AI में होगा. बट AI थोड़ा डेंजरस टेक्नोलॉजी है, अभी विजुलाइज कर पाना बहुत ही मुश्किल है. कुछ नहीं होगा तो हम लोग सब मिलकर खेती करेंगे, और क्या.
सूरत में एक स्टार्टअप है kisan.ai, तो AI लगाता है, खेती जिसको करना है उनके लिए AI बनाता है। आपका जो क्वेश्चन था कि सीनियर डेवलपर जूनियर डेवलपर का जो गैप है क्या वो कम होगा, हम लोग ने पिछले 2 महीने से अपनी कंपनी में AI इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ऑपरेशंस में, नॉट एज इन द प्रोडक्ट बट कंपनी में जो QA टीम है, जो सपोर्ट टीम है, उसमें क्या हो सकता है। हमें सपोर्ट टीम में सपोर्ट 5 चैनल्स पे होता है, चैट, ईमेल, कॉल, व्हाट्सएप और एक फोरम है। उसमें से एक चैनल पे हमने AI इम्प्लीमेंट किया है, चैट वाले में AI इम्प्लीमेंट किया है। और जैसे ही हमने AI इम्प्लीमेंट किया, वो AI 75% क्वेरीज को इंडिपेंडेंटली आंसर कर पा रहा है। तो उसी टूल को हम लोग पिछले 4 साल से यूज़ कर रहे थे, तो उसको आंसर्स तो पता है, ये वही क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं अलग अलग लैंग्वेज में। अब जो चैट सपोर्ट वाला बंदा था वो थोड़ा इनसिक्योर हो गया, वो छोटी छोटी गलतियाँ निकाल रहा था AI के। सर देखो फॉर्मेटिंग में एरर है, कॉमा सही से नहीं डाला, ठीक है सर, ये स्मॉल कैप होना चाहिए था, लार्ज कैप हो गया, सर यहाँ पे ना उसको ऐसे ये वाला वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए था, बहुत डिफिकल्ट है यूज़र के समझने के लिए, ठीक है, वो इनसिक्योर है। बट अगले दिन हमने उसका जॉब प्रोफाइल चेंज करके बोला कि यार 25% केसेस में आंसर गलत है या तो AI इज डिपेंडेंट ऑन यू, यू आर रिस्पॉन्सिबल कि ये 75 से 80-85 कैसे जाएगा। तो सडनली ही रियलाइजेस कि यार हमारे में कुछ FAQs में आर्टिकल्स मिसिंग है, अगर हम पहले से वो आंसर्स लिख करके पब्लिश कर दें, AI विल रीड दैट आंसर एंड अकॉर्डिंगली आंसर। जैसे ही उसको रियलाइज़ हुआ कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, क्योंकि उसके दिमाग में क्या था कि वो कस्टमर सपोर्ट है, एक क्लास डिवाइड होता है, और जो FAQs लिख रहा है वो कंटेंट वाला बंदा है, तो उसको लग रहा है अचानक से मुझे ये पोस्ट मिल गया, तो एक तो वो कंफर्टेबल हो गया, ठीक है। दूसरा, अब मेरे रात को 12 बजे से 8 बजे तक वाली जो शिफ्ट है, वहाँ मेरे को किसी को रखने की ज़रूरत नहीं है, मेरे लिए कॉस्ट बच गया, ठीक है। अब जो आपका क्वेश्चन था कि क्या सीनियर जूनियर में गैप खत्म हो जाएगा, एवरीवन विल एक्ट लाइक कि आपके पास बहुत सारे इंटर्न्स हैं, लाइक AI को आप अबंडेंट इंटर्न्स की तरह सोचो। तो अगर आप इंटर्न्स को मैनेज करना जानते हो तो आप AI को मैनेज कर पाओगे, आप यूज़ कर पाओगे AI को अपने लिए। वरना आपको लगेगा कि यार 4 घंटे लग गए मेरे को AI को ट्रेन करने में, 2 मिनट में तो मैं खुद टास्क कर देता। सो आप जब जूनियर डेवलपर थे, आपके बारे में भी किसी ने यही सोचा था कि यार 2 घंटे से इसको ये समझा रहा हूँ, 5 मिनट में तो मैं खुद कर लेता। सो वो अगर आप में कैपेबिलिटी है अपने टास्क को ब्रेक डाउन करके किसी को समझाने की, तो आप AI को यूज़ कर पाओगे, और जब आप AI को यूज़ करोगे तो थोड़ा सा आपका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगा। जो जूनियर सीनियर का गैप होता है, दैट इज़ नॉट अबाउट हाउ मच लाइन्स ऑफ कोड यू कैन राइट, वो कॉम्प्लेक्सिटी मैनेज करने का एक तरीका होता है, राइट। वो कॉम्प्लेक्सिटी फिलहाल जो AI है वो नहीं मैनेज कर पा रहा है। ह्यूमन लेवल सीनियर डेवलपर की जो कॉम्प्लेक्सिटी है कि मुझे पता है ये क्यों कोड फटा है, क्योंकि मेरे को ये पता है कि वो कोड हमने उस दिन जो लिखा था उसके कारण ये हो गया, अभी AI नहीं कर पा रहा है वो चीज़। लोग बोल रहे हैं कि कर लेगा, वो डिबेट करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी के साइड है वो बोलेगा अरे AI तो सब कुछ कर लेगा, ठीक है, तो मान लेते हैं कि सब कुछ कर लेगा। उसके बाद भी जो ह्यूमन लिमिटेशन है उस पर आपको वर्क करना पड़ेगा। AI आपका प्रोडक्ट मैनेजर AI से कोड नहीं लिख सकता है, कोड आपको ही लिखना है, बट शायद आप थोड़ा सा एलिवेट हो जाओगे कि फ्रेश कॉलेज ग्रेजुएट जिस लेवल का कोड लिखता था उससे बेटर कोड लिखेगा इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड इन टर्म्स ऑफ अगेन कितना प्रोडक्टिव हो सकता है, लाइक थ्रूपुट, कितने चीज़ों को वो ऑटोमेट कर सकता है। बट ये स्किल एक लर्न स्किल है, जैसे टेक्नोलॉजी में एक होता है इंडिपेंडेंट कंट्रीब्यूटर, एक टीम लीड, राइट। हर इंडिपेंडेंट कंट्रीब्यूटर टीम लीड नहीं बन पाता है, और हर टीम लीड बहुत अच्छा डेवलपर नहीं होता है, ठीक है। ये समझने की ज़रूरत पड़ेगी AI के टर्म्स में, ठीक है, कि अगर आप अच्छे इंडिपेंडेंट कंट्रीब्यूटर हो तो AI आपको अलग तरीके से हेल्प करेगा, आप अच्छे टीम लीड हो तो आपको AI अलग तरीके से हेल्प करेगा, बट ओपन रखना पड़ेगा, वरना 2 साल में आप ऐसे इररिलेवेंट हो जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे आज भी सूरत में बहुत लोग PHP में डेवलपमेंट करते हैं, कॉलेज ग्रेजुएट्स, फ्रेश कॉलेज ग्रेजुएट्स PHP को यूज़ कर रहे हैं, उनको पता नहीं चल रहा है कि 5 साल में इररिलेवेंट होने वाला है। PHP में कोई खराबी नहीं होती है, उस बंदे में भी कोई खराबी नहीं है, आउट ऑफ फैशन हो गया, राइट। और टेक्नोलॉजी एटलीस्ट फैशन ड्रिवन इंडस्ट्री है, राइट। 4 लोगों ने सिलिकॉन वैली से ट्वीट किया कि कल से क्लॉड यूज़ करेंगे, पूरी दुनिया क्लॉड यूज़ करेगी, ठीक है। क्लॉड अच्छा है बुरा है वो तो हम बाद में सोचेंगे, अभी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो वो आपको बस वो फैशन के बीच में रहना पड़ेगा। थोड़ा सा डिस्टर्बिंग होता है, आशीष सर ने जैसा बोला कि आज क्या हो रहा है, कल क्या होगा, 5 दिन के बाद न्यूज़ पहुंचेगा, उतने दिन में तो न्यूज़ चेंज हो जाएगा, थोड़ा डिस्टर्बिंग होता है,
मगर फिलहाल के लिए अगले 2 साल के लिए विल हैव टू लिव विद इट, राइट? नहीं तो बहुत जल्दी हम लोग आउटडेटेड हो जाएंगे। विपुल सर आपसे और अल्पेश भाई आपसे सवाल है, what सूरत innovative peoples are learn from the like Bangalore और दिल्ली? क्योंकि मैंने देखा है कि यहाँ के स्टार्टअप वहाँ जाके सक्सेस हो जाते हैं, जैसे यहाँ के लोग कनाडा जाके सक्सेस हो जाते हैं, तो यहाँ के स्टूडेंट को या जो भी स्टार्टअप है, हाँ, तो उनको क्या दूसरे सिटी से यहाँ सीखना चाहिए, उसके ऊपर क्या? नमन सर, आपने एक वैल्यूएशन का बात किया 850 पर, तो देयर इज अ लॉट्स ऑफ इनोवेटिव पीपल्स इन कॉलेजेस और स्टार्टअप्स लेवल पे। एसएसआईटी में मैंने देखा कि देयर इज अ लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स जो कॉलेज लेवल पे बहुत अच्छा काम करते हैं, उनको गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करती है, और इंक्यूबेटर इज द मेन रोल। ओके, अभी जो भी आइडियाज है उसकी आइडिया की वैल्यूएशन कैसे लगेगी और उसका मार्केट साइज कैसे वो स्टार्टअप डिसाइड करेगा, फिर वो पर्पस पे वो इन्वेस्टर्स के पास जाएगा। तो उसके लिए भी थोड़ा बताइए कि एक जो आइडिया होता है उसका वैल्यूएशन कैसे होगा और उसका साइज ऑफ मार्केट में उसको आइडिया नहीं होता है। हाँ, तो वो बारे में भी थोड़ा विपुल सर। मैंने तो बहुत जॉब दे दी है, अल्पेश भाई को मौका देते हैं। क्वेश्चन पास कर दिया आपने। ओके, सो आई मीन अगर आप सूरत की इकोसिस्टम समझे, हम स्टार्टअप की बात करते हैं, राइट? तो सो क्या होता है कि जो स्टार्टअप का आइडिया लेके बैठा है उसको पूरी जर्नी नहीं पता है। आई मीन इफ आई बी फ्रैंक विथ यू, तो सूरत का अगर बंदा है किसी को स्टार्टअप करना है तो उसको पहले पोस्ट मनी, प्री मनी, उसके जो इन्वेस्टर टर्म में जो टर्मिनोलॉजी होती है वो नहीं पता होती है। सेकंड, वो उनको लर्न करना पड़ेगा, दे विल लर्न इट, राइट? तो आई मीन हम कंपेयर कर रहे हैं कि बैंगलोर पुणे का जो बंदा है वहां से मैं क्या लर्न करना है और क्या कर सकते हैं, अगर वो बात करें तो दे आर नॉट रेडी। आई मीन वी आर नॉट रेडी एज अ स्टार्टअप कि हम फंड रेज करना है, मेरे को पता ही नहीं कैसे करना है, और वो करूंगा तो भी उसके कैसे मैं उनको एग्जिट दूंगा। हम बोलेंगे वो बंदा पहले बोलेगा 5 साल का विजन दिखाओ, हमें 2 साल का विजन नहीं पता है, आई मीन वी आर नॉट रेडी विद दैट, राइट? नेक्स्ट बोलेंगे 4 करोड़ चाहिए, पर 4 करोड़ खर्च कहाँ पे करोगे? आई मीन वो बंदा वो 4 करोड़ का आंसर नहीं दे पाएगा। सो जो एक प्रोसेस एंड सिस्टम होता है कि जिसके लिए आपको फंड रेज करना है, देयर आर द प्रोसेसेस जो आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, सिस्टम अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। एंड जो हम अगर आप एक इकोसिस्टम की बात करें तो हमें पता है कि आईआईटी से पास आउट किया हुआ बंदा है तो अगर वो पिच करने जाएगा तो 99% उसको फंड मिल जाएगा। दैट्स अ वन कैवियट इन द फंडिंग इंडस्ट्री, बट होता है, आई मीन नमन विल एग्री विद मी, तो आईआईटी से तो उसको मिल ही जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसने आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए बहुत मेहनत की है, पूरे भारत में आया, आगे बढ़ा, वो आईआईटी में एडमिशन मिला। ऐसा नहीं कि उसने आईआईटी से पास आउट किया तो मिल गया, राइट? बट उसका जो थॉट प्रोसेस होता है, उसका जो नॉलेज होता है, उसका जो एजुकेशन स्टाइल होता है वो डिफरेंट है हमारे से। हम अगर इस एक नॉर्मल कॉलेज से पास आउट हुए, वो हमें जो कल्चर ही नहीं मिला है, हमें वो कंपटीशन ही नहीं मिली है, राइट? तो ये जो चीज है हमें मिली नहीं है तो हमें जाकर सीखनी पड़ेगी। सो विल गो, आई मीन पीपल विल लर्न दैट, आइदर यू लर्न फ्रॉम हियर और गो बैंगलोर, डजंट मैटर, बट वो आपको लर्न करना पड़ेगा। देन यू विल बी सक्सेस, देन आपको वो पैसा चाहिए तो मिलेगा और आपको कस्टमर मिलेंगे। सो दैट्स वन, आई थिंक कि आपको उसके लिए रेडी होना पड़ेगा, आपको उसको सीखना पड़ेगा। सो आपको बी ओपन टू लर्न। आपको ना बोलो मेरा यही आइडिया 4 करोड़ चीज दे दो कर लूंगा, ऐसे नहीं होगा। यू हैव टू लर्न अदर थिंग्स, लॉट्स ऑफ थिंग्स। दैट्स आई कैन सी एक गैप है जो मैं फील करना चाहिए होगा। आपने जो क्वेश्चन पूछा वैल्यूएशन का, ठीक है, जो इनिशियल स्टेजेस में आप फंडिंग रेज करने जाते हो तो कोई वैल्यूएशन पहले डिसाइड नहीं होती है, ठीक है? सिर्फ 2 चीज़ें डिसाइड होती हैं, इन्वेस्टर को कितना परसेंट चाहिए, मुझे कितना पैसा चाहिए, ठीक है? एज अ फंक्शन ऑफ दैट, जैसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स होंगे वो बोलेंगे मिनिमम 25% चाहिए, और मैं बोलूँगा कि मुझे नेक्स्ट माइलस्टोन पे पहुँचने के लिए 2 करोड़ रुपए चाहिए, जो कि माइलस्टोन डिफाइन हुआ है। तो 2 करोड़ के लिए 25% आपने दिया, कंपनी का पोस्ट मनी वैल्यूएशन 8 करोड़ हो गया, ठीक है? बहुत सिंपल है। जब आप थोड़ा आगे बढ़ते हो, अगर एकदम एंड स्टेज सोचो कि आपको अपनी कंपनी बेचनी है, ठीक है, तो आपकी करंट रेवेन्यू या प्रॉफिट एंड ग्रोथ रेट, ये दोनों का फंक्शन होता है। सो फॉर एग्जांपल, अगर मेरी कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा रही है और मेरा 100 करोड़ का रेवेन्यू है, ओके, और ये रेवेन्यू पिछले 1 साल में डबल हुआ है, ओके, 50 करोड़ से 100 करोड़ पहुंचा है, तो करंट रेवेन्यू है 100 करोड़, और मैं सिर्फ टेक्नोलॉजी सास कंपनीज की बात कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर कंपनीज की बात कर रहा हूँ, और मेरा ग्रोथ रेट डबल है, ओके, मेरे को 100 करोड़ का 10 से 20 गुना वैल्यूएशन मिलेगा, ओके। सो
1000 करोड़ से 2000 करोड़ के बीच में मेरे को अगर वैल्यूएशन मिलेगा अगर मेरी कंपनी 100 करोड़ का आज रेवेन्यू कर रही है और 100% का ग्रोथ रेट है, ठीक है। अगर मेरी कंपनी प्रॉफिट कर रही है और 100% से कम ग्रोथ रेट है तो मैं प्रॉफिट के मल्टीपल में बोलूँगा 5 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है और मेरा 20% का ग्रोथ रेट है, 5 × 20 100 करोड़ का मेरा वैल्यूएशन होना चाहिए। तो ये बहुत सिंपल है। जब आप कंपनी बना रहे हो फर्स्ट डे सेकेंड डे आपको पता ही नहीं है कि रेवेन्यू क्या होगा। इनका एग्जांपल लेते हैं, 42,000 करोड़ का टेक्सटाइल मार्केट है। टेक्सटाइल मार्केट 42,000 करोड़ में सॉफ्टवेयर के लिए कितना स्पेंड करेगा, मान लेते हैं 400 करोड़, ठीक है। 400 करोड़ के लिए स्पेंड करेगा या ऑलरेडी कर रहा है और आपके सॉफ्टवेयर के कारण वो 450 करेगा। तो जो डेल्टा है उसको हम इवैल्यूएट करेंगे कि अभी तक वो 400 करोड़ का सॉफ्टवेयर ऑलरेडी खरीद रहा है, यानी कि उस इंडस्ट्री को सॉफ्टवेयर खरीदना आता है, मगर आपका सॉफ्टवेयर के लिए वो लोग शायद 40 करोड़ और देंगे। वो 40 करोड़ क्यों देंगे? क्योंकि शायद उनका 400 करोड़ का कॉस्ट सेविंग होगा या 120 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होगा। जनरली जो रेवेन्यू जनरेटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं उनकी पोटेंशियल ज़्यादा होती है, कॉस्ट सेविंग की पोटेंशियल कम होती है। तो आप जो वैल्यू ऐड हुआ है उसका एक रूपी वैल्यू लगा करके देखिए, ठीक है। सपोज AI अगर समय बचाता है किसी का, ठीक है, AI US में एक ड्राइवर का समय बचाता है, ड्राइवर की कीमत क्या है, $14 पर आवर। और इंडिया में अगर AI एक ड्राइवर का समय बचाता है उसकी कीमत है प्रॉब्ली 80 रुपये, $1 पर आवर, ठीक है। तो अगर AI समय बचा रहा है, अगर मैंने बोला जो पैसा बचाने वाले स्टार्टअप्स हैं उनका थोड़ा कम वैल्यूएशन होता है, बट आप $14 को ऑटोमेट कर रहे हो और आप $1 को ऑटोमेट कर रहे हो, आपने सॉफ्टवेयर सेम बनाया है। प्रॉब्ली इंडिया के लिए ऑटोनोमस ड्राइविंग सॉफ्टवेयर बनाना ज़्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है। बट अगर आप US बेचने चले गए ना उसको, तो आपकी 14 गुना कीमत हो जाएगी सिर्फ इस बात से, ठीक है। और ये बहुत सारे बच्चे जब कॉलेज टाइम में बनाते हैं ना, मैं अभी भी सूरत में लोगों से मिलता हूँ, बोला सर हम फेसू में बेस्ट सॉफ्टवेयर है, हम वराछा में बेस्ट सॉफ्टवेयर है। यार वराछा इतना सा मार्केट है, मतलब वराछा का पॉपुलेशन 15 लाख है, उसमें आप बेस्ट बन करके करोगे क्या? मतलब ह्यूमैनिटी डजंट केयर, राइट। 15 लाख लोगों के लिए आपने बनाया है कुछ, चैट GPT 8 अरब लोगों के लिए कुछ बना रहा है। सेम इन्वेस्टर को आप पिच कर रहे हो कि सर वो नॉन प्रॉफिटेबल स्टार्टअप में आपने इन्वेस्ट कर दिया, मेरे में इन्वेस्ट कर दो, राइट। आपका इम्पैक्ट ही नहीं, अगर आप सक्सेसफुल हो भी गए तो क्या, राइट। तो बस वो डिफरेंस जिस दिन सब लोग समझने लग जाए तो आपको समझ में आएगा कि वो वैल्यूएशन किस बात का है। ऑल्सो वैल्यूएशन फंड रेज के लिए वर्सेस वैल्यूएशन कंपनी में एग्जिट लेने के लिए अलग होता है। जैसे अगर विपुल सर हैं, अगर इन्होंने IPO किया होता और पब्लिकली लिस्ट हुए होते, मेरे को एग्जैक्ट नंबर्स नहीं पता है बट एटलीस्ट 4 गुना ज़्यादा पैसा, कंपनी की वैल्यूएशन 4 गुना ज़्यादा होती एज अपोज टू जो इनको कैश एग्जिट मिला होगा। क्योंकि अगर फाउंडर कंपनी से निकलना चाह रहा है तो आप एज एन इन्वेस्टर सोचोगे यार रिस्क ज़्यादा है मेरा, मैं क्यों करूँ, वर्सेज कोई पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है जहाँ फाउंडर लगा हुआ है पिछले 20 साल से, अगले 20 साल तक कमिट कर रहा है, तो उसकी वैल्यूएशन ज़्यादा होगी। तो किस सिनेरियो में वैल्यूएशन आप देख रहे हो? Thank you very much for answering the questions. Now I would request Puneet Kajara to give vote of thanks. So मेरे भी questions हैं, मैं offline में लूँगा. So vote of thanks. Again, thank you for sharing amazing knowledge and maybe much needed knowledge. Session is recorded, so maybe somewhere we will upload with your permission on YouTube. So the people who are not joining today can know the things. So thank you first of all the audience. They were seated here on the first session of Surat Startup Summit 2025, and tomorrow we have many sessions. जैसे उन्होंने बताया किसान AI, तो एग्रीकल्चर वाला स्टार्टअप भी कल आ रहा है, बहुत सारे AI वाले फाउंडर्स जिसने कुछ बिल्ड किया है वो कल बोलने वाले हैं, AI पे है, इन्वेस्टमेंट पे है, कल बहुत सारे इन्वेस्टर्स आ रहे हैं या फिर इन्वेस्टर पैनल है। हमारे पास 12-15 स्टार्टअप्स आ चुके हैं जिसको कल पिच करना है, तो उसके लिए भी है। सो कल पूरा दिन ऐसा ही जैसा आज का सेशन अगर अच्छा, किसको आज का सेशन अच्छा लगा? हाँ, ये सब कल आने वाले हैं। सो इट्स 100% NPS स्कोर, हमारा सॉफ्टवेयर NPS स्कोर मैनेज करता है इवेंट के लिए, तो मैंने अपना एडवर्टाइज कर लिया यहाँ पे। कल का टाइमिंग है, फुल डे है। कल सुबह 10:30 बजे ई कॉमर्स पैनल से लेके 6:30 बजे तक पूरे सेशन से, एंड हो लिया क्या? ओके वेट, अगर इमेज वो सारी है वो अगर हम यहाँ पे रोटेट कर पाए तो तब तक मैं थोड़ा आउट ऑफ थिंग्स कंप्लीट कर लेता हूँ। ओके,
सो थैंक यू ऑल. मैं थोड़ा समराइज करता हूँ तो आपको थोड़ा याद भी रहे. जैसे आशीष नारवाना ने बताया कि सूरत में आज सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो पहले नहीं था, एंड माइंडसेट की जरूरत है, इन डेप्थ जाने की जरूरत है, एंड मे बी ओपन टू चेंज एंड ओपन हंग्री फॉर लर्न. ये चीज आशीष सर ने आज बहुत ही अच्छे से बताया. विपुल सर ने बताया कि नॉलेज तो सब जगह है, उसको यूज कैसे करना है ना, हाउ यू इम्पोर्टेंस अबाउट बिल्डिंग अ कल्चर फ्रॉम द top down approach, है ना, top leadership team, then second leadership team, and that is all key takeaway for myself also. And दूसरा है कि नेक्स्ट जनरेशन अभी सॉफ्टवेयर अडॉप्ट कर रही है, तो ना इट इज अ राइट टाइम कि जो अगर सूरत से कोई बिल्ड कर रहा है, अगर टेक्सटाइल या डायमंड में भी जाना है तो नेक्स्ट जनरेशन नाउ एडॉप्टिंग. तो ये थोड़ा मैसेज था. नमन ने बताया कि हाउ सूरत फाउंडर को फ्रूगल फोकस बनना चाहिए, एंड मेनली उसे जो बताया, जो मैं भी बरसों से मान रहा हूँ कि ना सूरत के फाउंडर, कंपनी, बिजनेसेस, टेक्सटाइल, डायमंड सब में एक लेख है ब्रांडिंग, पीआर और ग्लोबल रिच का. शायद ग्लोबल बिजनेस कर लेते हैं, क्लाइंट को सप्लाई कर लेते हैं. मेरे अभी एक बंदे से बात हुआ कि वो जापानीज कंपनी के लिए वो डायमंड वेफर सप्लाई कर रहे हैं. मैंने उसका वेबसाइट देखा ना तो एसएसटीपी का एरर आ रहा था. अभी जापानीज कंपनी को डायमंड वेफर सप्लाई कर रहे हैं, विच इज सेमीकंडक्टर थिंग्स, जो बहुत ही इनोवेटिव टेक्नोलॉजी शायद होगी सूरत में, तब जाके हो रहा होगा. एक वेबसाइट में एसएसएल का एरर है, आप समझे. तो आप मतलब समझो कि ब्रांडिंग, पीआर पे ध्यान ही नहीं दे रहे. एंड जो उसने बताया ना कि स्टेप आउट ऑफ जोन, कंफर्ट जोन, और ये होता है एंड मेन थिंग कि वर्ल्ड स्टेज पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. दिस इज ऑल द माय टेकअवेज फॉर टुडेज सेशन. थैंक यू ऑल, एंड थैंक यू अल्पेश वगासिया फॉर द प्रिपेयरिंग द क्वेश्चंस दैट this knowledge are like diamonds, and you have found this knowledge. Thank you all. Thank you, audience.